Hello guys, are you able to see me? Are you able to hear me? Can you guys see me? Can you guys hear me? Please reply so that I can start the streaming of a session today. जल्दी जल्दी बोलो. So we do not waste much of our time and start with the session. Okay, so now let us quickly start with the session and let's jump on to the registration aspect, which we were doing yesterday. So let us go and quickly start with the registration aspect. So अंडर रजिस्ट्रेशन हमने कल क्या देखा था कि रजिस्ट्रेशन आता है सेक्शन नंबर 22 से सेक्शन नंबर 30 तक. करेक्ट है. सेक्शन नंबर 22 से लेके सेक्शन नंबर 30 तक क्या आएगा आपका रजिस्ट्रेशन आएगा. करेक्ट. सो under this registration we have seen there are section number 22 person who are liable for registration, person who are not liable for registration, and compulsory registration who has to take compulsory registration. Correct. So three sections is basically talking about who have to take the registration, when, how, all this thing. Correct. And then section number 25 onwards, these are all procedural aspect: procedure for registration, deemed registration, provision for casual taxable person, non-resident taxable person, then any kind of amendment you have done in the registration if you want, then cancellation or suspension of registration and revocation of cancellation. Correct. So these are all procedural aspects as far as section number 25 onwards are concerned, right? So important aspect is section number 22, 23 and 24. So in the section number 22, what we have seen in the previous session was we identified that section number 22 is divided into four subsections. Supplier who is liable in the state or union territory. Correct. So first one किसके बारे में बात करता है? सप्लायर के बारे में बात करता है. करेक्ट. सेकेंड इज टॉकिंग अबाउट सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर एन एग्जिस्टिंग लॉ. दैट मीन्स जब लॉ बना था जीएसटी उस टाइम पे जो एग्जिस्टिंग लॉज थे वैट एंड सर्विस टैक्स उनके लिए क्या लाइबिलिटी है. देन इन द केस ऑफ ट्रांसफरी और सक्सेसर, अगर मैं मेरा बिजनेस किसी को ट्रांसफर करता हूं या फिर मेरा बेटा मेरा बिजनेस को सक्सेशन में लेके जाता है, देन who is the person who is liable and when he is going to be liable. And transferee in case of amalgamation or demerger, if I'm amalgamating or if I'm demerging my company, in that scenario जो बंदा ट्रांसफरी है, जो बंदा लेने वाला है बिजनेस को, तो उसको कब रजिस्ट्रेशन लेना है. करेक्ट है. Now let us go and see supply. We have studied what supplier liable in the state or union territory where he makes taxable territory, right? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? CGST Act पढ़ रहे हैं. But here what it states is that liable in each and every state. That means under the CGST Act it states that if you are supplier liable in the state or union territory from where you are making the taxable supply, then you are supposed to take the registration. You are liable to take the registration. Correct. So under this, let us go and see what do you mean by this. That under this we have seen that if your aggregate turnover in the previous financial year exceeds 20 lakhs rupees. So we had seen what is aggregate turnover. Aggregate turnover के अंदर क्या होगा? It is in PAN basis. It is in PAN wise all India basis turnover. Correct. It is a PAN wise all India turnover and we are not talking about just द सिंगल रजिस्ट्रेशन. राइट. मेरा समझो कि एक पैन नंबर में 4 जीएसटी नंबर है, 2 in the same state and 3 in another state and 4 in another state. So I will have to calculate the turnover on the PAN number basis and not on the individual registration number basis. Right. So it is on a PAN basis and not on an individual level basis. And what do you mean by the aggregate turnover? Aggregate turnover के अंदर क्या क्या इंक्लूड करना है हमको? Aggregate turnover के अंदर हमको इंक्लूड करना all the taxable supplies, all the interstate supplies, all the exempt supplies will also be included in the definition of aggregate turnover. हमने exempt supplies देखा था कल क्या क्या होता है. करेक्ट है. So we will also quickly recap what is an exempt supplies. Exempt supplies are basically हमने देखा था supplies are of two types. Right. हमने definition के अंदर क्या देखा था? Let's go and jump to definition quickly and see कि exempt supply का definition हमने क्या देखा था. Exempt supplies का मतलब क्या होता है? Supply of goods or services or both which attracts nil rate of tax. That means जिसपे nil rate of tax है और wholly exempt from tax under section 11 or under section 6 of the IGST Act and includes non-taxable supply also.
नॉन टैक्सेबल सप्लाई हमने देखा था जिसपे टैक्स नहीं लगता है, दैट मीन्स व्हाट, दोज आर बेसिकली अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. सो इन शॉर्ट व्हाट वी हैव डन वाज वी हैव आइडेंटिफाइड दिस सप्लाई एज लाइक दिस. सप्लाई ये हो गया. सप्लाई कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज टैक्सेबल and one is non-taxable. Now, जब मैं टैक्सेबल की बात करता हूं, नॉन टैक्सेबल की बात करता हूं, उसके अंदर क्या आ गया? I have two products. One is alcohol for human consumption plus my 5 petroleum products. Correct? When I talk about taxable, it has three components, right? 1, 2 and 3. First is others, जो नॉर्मल जिस पर टैक्सेबल लगने वाला है. सेकेंड आर एग्जेम्प्टेड, जो सेक्शन 11 ने कोई चीज को एग्जेम्प्ट किया है स्पेसिफिकली. एंड थर्ड इज निल रेटेड. करेक्ट. सो जहां पे भी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलने वाला है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस व्हाट दे हैव डन इज दे हैव एडेड ऑल दीज आइटम्स, ऑल दीज प्रोडक्ट्स, ऑल दीज टैक्सेबल सप्लाईज अंडर द हेड कॉल्ड एग्जेम्प्ट सप्लाईज. क्लियर एवरीबॉडी? सो ये था एग्जेम्प्ट सप्लाईज. करेक्ट. तो एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर क्या होगा? एग्जेम्प्ट सप्लाईज को भी ऐड करना है. वी हैव टू ऐड एग्जेम्प्ट सप्लाईज ऑल्सो एज वेल एज द एक्सपोर्ट सप्लाईज. जो एक्सपोर्ट के लिए हम सप्लाईज कर रहे हैं, दोज ऑल्सो नीड्स टू बी एडेड एज फार एज जो एग्रीगेट टर्नओवर इज कंसर्न. नाउ इसके अंदर एक्सक्लूड क्या करना है? इफ आई एम गेटिंग एनी इनवर्ड सप्लाईज अंडर आरसीएम, अगर किसी ने मुझे इनवर्ड सप्लाई दिया और वो इनवर्ड सप्लाई जो है उस पर मैं आरसीएम पे कर रहा हूं, सो आई एम जस्ट मेकिंग द पेमेंट बट आई एम नॉट डूइंग द सप्लाई कॉन्सेप्ट. करेक्ट है? व्हेन वी वर इन द फर्स्ट सेशन वी हैव सीन दैट द जीएसटी इज लेवी का कॉन्सेप्ट अलग है. लेवी किस पे होता है? गुड्स एंड सर्विसेज पे होता है. और and the payment and collection is a different concept, right? So under inward supplies under RCM, I am just making the payment to the government, right? Supply का काम कौन कर रहा है? जो बंदा मेरे को supply कर रहा है, right? So ultimately that will be added in his turnover and not in my turnover. Also, we have to exclude the GST component from the turnover. Why? Because GST is something which is owned by the government and GST is basically उसका टर्नओवर है, मेरा टर्नओवर नहीं है. करेक्ट है? राइट. सो देन दैट वी सॉ दैट एग्रीगेट टर्नओवर इफ इट exceeds 20 lakh rupees, then only a person becomes liable to take the registration, right? So basically हमने aggregate turnover देख लिया. aggregate turnover क्या होता है? aggregate turnover includes all these things, right? And it excludes what all things we have seen, correct? So now if the aggregate turnover exceeds 20 lakh rupees, you have to take the registration. There's first proviso which states that taxable supplies of goods, services or both from special category states where the aggregate turnover in the financial year exceeds 10 lakh rupees, right? So हमने देखा था special category states हैं. उस स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर कुछ स्टेट्स ने ये बोला कि सर हमको जो एग्रीगेट टर्नओवर है हमको 10 लाख रुपीस का चाहिए, राइट? सो देयर इज द फर्स्ट प्रोविजो व्हिच स्टेट्स दैट इफ माय टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स, सर्विसेज और बोथ, हमने टैक्सेबल सप्लाईज में समझा था क्या है? जो चीज नॉन टैक्सेबल नहीं है वो टैक्सेबल सप्लाई है. नॉन टैक्सेबल क्या है? अल्कोहल, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनली excluded from the scope of supply, and 5 petroleum products those are statutorily excluded from the scope of supply. उसके अलावा जो भी है वो taxable supplies हैं. So taxable supplies of goods, services or both from the special category states. Special category states कौन से? वो भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देख लिया था. एग्रीगेट टर्नओवर where it exceeds 10 lakh rupees, करेक्ट है? सो ये कहां पे बोला जा रहा है? दैट मीन्स इन केस ऑफ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख के ऊपर जाता है देन द पर्सन बिकम्स लायबल टू टेक द रजिस्ट्रेशन, करेक्ट है? इन जनरल 20 लाख रुपए हैं. और एक फर्स्ट प्रोवाइजो आया दैट इफ माई टैक्सेबल सप्लाईज, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द टैक्सेबल सप्लाईज एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्रीगेट टर्नओवर. इफ माई टैक्सेबल सप्लाईज इन दीज states of Manipur, Mizoram, Tripura and Nagaland of goods and services are both, taxable supplies of goods and services are both from these special category states is more than 10 lakh rupees, then there's a liable to get registered, correct? Then we saw there's a further proviso which states that government on requisition of the special category states. ये जो special category states है हमने देखा था the list of special category states. So अगर गवर्नमेंट को अगर requisition मिलता है of special category states plus on the recommendation of the council, it can enhance the aggregate turnover
फ्रॉम 10 लाख रुपीज टू 20 लाख रुपीज। ये जो एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, इसको 10 लाख से 20 लाख रुपए लेके जा सकता है, करेक्ट। सो दैट इज वाई वी कैन सी हियर दैट ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ special category states are included here. Other than this, there are other states जिन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि सर ये 10 lakhs नहीं, हमको 20 lakhs का लिमिट चाहिए, करेक्ट है। सो we'll recap the chart also, कौन से स्टेट ने कितना बोला, करेक्ट। फर्स्ट अंडरस्टैंड कि कौन सा प्रोविजन क्या बोल रहा है, करेक्ट। तो पहला प्रोविजन 20 लाख रुपए का है, उसके अंदर फर्स्ट प्रोवाइजो आया जो बोलता है स्पेसिफिकली फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख के ऊपर जाता है देन आई बिकम लायबल। उसके अंदर भी सेकंड प्रोवाइजो ये आया, इन दैट आल्सो आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स only 4 special category states accepted this 10 lakhs का limit. Other special category states gave a requisition to the government, and plus the council also recommended to enhance the aggregate turnover for special category states also to 20 lakh rupees. Clear everybody? यहाँ तक clear है? Then there's one more thing which you have to understand. Provided also there's another one more proviso. तो ये एक proviso हो गया, ये एक प्रोवाइजो हो गया, ये एक प्रोवाइजो हो गया। प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरा उसका एक्सेप्शंस क्या क्या है, करेक्ट है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है मेरा, अगर एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख के ऊपर हुआ तो मैं लायबल हूं रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, बट उसके अंदर डिफरेंट सिनेरियोज कौन से हैं, दैट इज गिवन बाय द प्रोवाइजोस, करेक्ट। सो प्रोवाइडेड ऑल्सो गवर्नमेंट on the requisition of the state, right है, government on the requisition of the state। तो यहां पे क्या हो गया, on the requisition of special category states। then here comes on the requisition of the states, provided also government on the requisition of the state plus on the recommendation of the council enhance the aggregate turnover from 20 lakh rupees to 40 lakh rupees। यहां का जो एग्रीगेट टर्नओवर है उसको इंक्रीज कर दिया फ्रॉम 20 लाख रुपीज टू 40 लाख रुपीज इन केस ऑफ सप्लायर एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स, राइट है। अगर कोई बंदा एक्सक्लूसिवली सप्लाई करता है गुड्स का, देन some states can request to the government that please enhance the 20 lakhs ka limit to 40 lakhs ka limit, correct hai। so that is what is there in this particular scenario. This is how basically the whole concept of this 10 lakhs 20 lakhs and 40 lakhs came into picture, correct। so explanation kya hai iska, now let us understand this explanation also। person considered as exclusively supplier of goods, जो सप्लायर ऑफ गुड्स है वो एक्सक्लूसिवली सप्लायर ऑफ गुड्स माना जाएगा इवन इफ ही इज रिसीविंग कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट। अगर उसको कोई छोटा मोटा इंटरेस्ट आता है या डिस्काउंट आता है उस, तो दैट इज अ सर्विस व्हाट इज गेटिंग, करेक्ट। दैट इज वो किस लिए उसको डिस्काउंट मिल रहा है, सर्विस मिल रहा है, बिकॉज ही इज एंगेज्ड इन द exempt supplies of extending deposits, loans और एडवांसेस। मैं अगर किसी को लोन देता हूं तो मुझे इंटरेस्ट आने वाला है। सो मेरा बिजनेस, मेरा क्या है, सर्विस क्या है, आपने पढ़ा था कि यूज ऑफ मनी इज अ सर्विस का डेफिनेशन के अंदर आता है। दैट मीन्स इफ आई एम गिविंग मनी ऑन लोन, आई एम गेटिंग इंटरेस्ट। दैट मीन्स क्या होगा, मैं इन जनरल सप्लाई ऑफ गुड्स का काम करता हूं विच इज एक्सक्लूसिव, बट इफ आई हैव गिवन सम अमाउंट एज लोन एंड आई एम गेटिंग इंटरेस्ट, स्टिल दैट इंटरेस्ट और डिस्काउंट का कंपोनेंट जो मेरे को परचेज में मिलेगा, सेल में मिलेगा, दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज माई टर्नओवर, दैट विल नॉट ब्रीच माई कंडीशन दैट आई एम नॉट एन एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स, राइट। नो डाउट यहाँ पे सर्विसेज की बात हो रही है, करेक्ट, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग बेनिफिट टू द पीपल, यहाँ पे नहीं बोला बिकॉज हर आदमी इंटरेस्ट का काम करता रहता है, राइट। सो अगर मेरे पास इंटरेस्ट का इनकम है देन इट विल नॉट take away my right of calling myself an exclusive supplier of goods. Clear everybody? Understanding? Correct? So suppose Mr. A यहाँ पे है, he is into two activities. एक तो ये लोन का काम करते हैं, that means he is giving advances, एडवांस दे के वो इंटरेस्ट कमाते हैं उसके ऊपर, एंड सेकेंड ही सप्लाइंग गुड्स, एक्सक्लूसिवली सप्लाइंग गुड्स। अगर वो एक्सक्लूसिव सप्लाई गुड्स हैं, उसको यहाँ पे इंटरेस्ट का इनकम आता है, देन इट विल नॉट बी सेड दैट ही इज नॉट इनटू एक्सक्लूसिवली सप्लायर ऑफ गुड्स, राइट। ये यही माना जाएगा बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग एनी अदर काइंड ऑफ सर्विसेज का इनकम, ही इज नॉट गेटिंग कंसल्टेंसी इनकम, ही इज नॉट गेटिंग प्रोफेशनल फीस, ये सब उनको सर्विसेज के लिए नहीं मिल रहा है। ओनली सर्विस व्हाट दे आर गेटिंग इज यूज ऑफ मनी के लिए जो सर्विस के लिए पैसा मिल रहा है, दैट इज इंटरेस्ट इनकम और डिस्काउंट, देन दिस पर्टिकुलर कंडीशन प्रिवेल्स दैट यू आर एन एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स। क्लियर एवरीबडी? राइट है। देन there's an explanation which I want to give here. इसके साथ explanation भी है, एजेंट सेलिंग ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। अगर कोई एजेंट है हमने सब पढ़ा था शेड्यूल नंबर 1 के अंदर, अगर कोई एजेंट है
करेक्ट है. ही इज सेलिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, ही इज सेलिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एजेंट ऑन द इनवॉइस ऑफ द एजेंट, राइट है. एजेंट खुद का इनवॉइस दे रहा है. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, कंसाइनमेंट एजेंट, एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सेल्स एजेंट. हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था इसको, राइट. देन इट विल बी इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द एजेंट एंड नॉट ऑन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रिंसिपल. व्हाई? बिकॉज एजेंट खुद का इनवॉइस रेज कर रहा है. सिमिलरली सप्लाई ऑफ गुड्स, इफ दिस सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ रजिस्टर्ड जॉब वर्कर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क, राइट. अगर समझो कि यहां पे मैं एक प्रिंसिपल हूं, मैंने एक जॉब वर्कर को बोला कि प्लीज मेक दिस फर्नीचर फॉर मी, राइट है. मैंने यहाँ पे उसको कुछ सामान भेजा, मैंने उसको बोला फर्नीचर दे दे. नाउ आई हैव अ पर्सन हु इज गोइंग टू बाय एंड ही स्टेज हियर, सो he can take the goods directly from this job worker, registered job worker, correct है. There is no point this registered job worker sending the goods here and I again sending the goods here, correct. So similarly supply of goods by registered job worker, supply कौन कर रहा है? registered job worker कर रहा है. After completion of his job work, then it will be included in the supply of goods of principal and not the aggregate turnover of the that is aggregate turnover of the principal, right. इसको क्या बोला जाएगा? aggregate turnover of the principal बोला जाएगा and not the aggregate turnover of the जॉब वर्कर, करेक्ट है. इज इट क्लियर टू यू गाइस, राइट है. तो ये हमने देखा था एज फार एज रजिस्ट्रेशन इज कंसर्न. इसका एक हमने समरी चार्ट बनाया था. लेट मी शो यू द समरी चार्ट ऑल्सो. सो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, राइट. इन केस ऑफ मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इफ आई एम सप्लाइंग 10 lakhs के नीचे, देन मेरे को लाइबिलिटी नहीं है रजिस्ट्रेशन लेने का. इफ इट इज एक्सीडिंग 10 lakhs रुपीज, देन आई एम लाइबल टू टेक द रजिस्ट्रेशन, करेक्ट. इन केस ऑफ एग्जाम्पशन नंबर 23(2) हम साथ में पढ़ने वाले हैं. दैट मीन्स अदर देन दी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, दैट मीन्स उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, ये और जो 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, प्लस 2 स्टेट्स ऑफ पुडुचेरी एंड तेलंगाना, राइट. हमने क्या देखा था? सेकेंड प्रोविजन क्या बोल रहा था? इवन द स्टेट कैन रिकमेंड द गवर्नमेंट दैट वी वांट टू कीप द लिमिट फ्रॉम 10 lakhs to 20 lakh rupees, right. और वी वांट टू कंटिन्यू विद 20 lakhs rupees एंड वी डू नॉट वांट टू विश टू कंटिन्यू विद 40 lakh rupees, राइट. तो यहां पे जब हम डेफिनेशन देख रहे थे, लेट अस क्विकली गो एंड सी दिस, 1 second. तो यहां पे मैं क्या बोल रहा था? यहां पे व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट द गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन जा सकता है स्टेट से दैट आई वांट टू इंक्रीज माय थ्रेशोल्ड लिमिट फ्रॉम 20 lakhs to 40 lakhs rupees बाय द स्टेट. और जब मैं यहां पे देख रहा हूं इस चीज को चार्ट फॉर्म के अंदर, यहां पे क्या हुआ है? देयर आर 2 डिफरेंट स्टेट, वन इज पुडुचेरी एंड वन इज तेलंगाना. ये पुडुचेरी एंड तेलंगाना ने क्या बोला? हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं चाहिए, वी आर हैप्पी विद 20 lakhs rupees, करेक्ट. सो दे केम इनटू दिस स्लैब 20 lakhs rupees का. ये जो 4 स्टेट्स हैं, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, दे टोल्ड दैट वी आर नॉट हैप्पी विद 10 lakhs लिमिट, वी वांटेड 20 lakhs rupees, करेक्ट है. सो दिस इज हाउ बेसिकली द लिमिट्स गॉट एक्सटेंडेड, करेक्ट. देन देयर अदर्स, इसके अलावा जो भी स्टेट्स हैं या फिर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, उनके लिए क्या लिमिट है? लेट अस गो एंड सी दैट, करेक्ट. सो उनके लिए क्या लिमिट है? उनके लिए ये लिमिट है इन केस ऑफ असम एंड जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, राइट. ये जो उसकी यहां पे क्या हो गया? दिस आर द फ्यू स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर पार्ट हो गए और ये भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर पार्ट हो गए, राइट. सो दीज आर द फ्यू स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जिन्होंने बोला कि सर हमको जो है 20 lakhs नहीं, हमको 40 lakhs rupees चाहिए इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स. दैट मीन्स मेरे पास जो सप्लायर ऑफ गुड्स करते हैं खाली in my state, if they're doing only supply of goods, then I want a threshold limit of 40 lakhs rupees so that they do not take the registration. Similarly, if I'm doing supply of services plus supply of goods, then the threshold limit remains 20 lakh rupees only. That means in case of the Assam, Jammu Kashmir, Himachal Pradesh and other states, Assam, Jammu Kashmir, Himachal Pradesh and other states, if my turnover is exceeding 40 lakh, if it is exceeding if I'm doing exclusive supply of goods, राइट है, और जब तक मैं 40 lakhs का लिमिट करता हूं इंटरेस्ट रेट के अंदर, दैट मीन्स इन दैट सिचुएशन आई नीड नॉट टेक द रजिस्ट्रेशन. क्लियर एवरीबॉडी? इज इट क्लियर टू यू गाइस? एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स इन द स्टेट ऑफ असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड अदर स्टेट्स 40 lakhs का लिमिट है. उसके अलावा अगर मैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज करता हूं या सप्लाई ऑफ गुड्स करता हूं, देन इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज 20 lakhs का लिमिट ओनली. ये हमने कल अंडरस्टैंड किया था, राइट. नाउ लेट अस गो एंड सी द अदर एस्पेक्ट्स की ये क्या बोलता है एज फार एज रजिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड, करेक्ट. नाउ एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 23(2). अब हम 22nd पढ़ रहे हैं, सेक्शन नंबर 22 पढ़ रहे हैं, राइट.
तो सेक्शन नंबर 22 में के बाद क्या आता है, सेक्शन नंबर 23 आता है। 23 क्या बोलता है, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सो 23(2) के अंदर क्या गया है, देयर हैव गिवन अ स्पेसिफिक एग्जेम्पशन which has to be read with what, exemption किसके लिए दिया गया है, exemptions for registration। हमको रजिस्ट्रेशन कहां लेना है, सो वी नो दैट रजिस्ट्रेशन जो हमको लेना है दो सेक्शन के अंदर लेना है, सेक्शन नंबर 22 एंड सेक्शन नंबर 24, करेक्ट है। नाउ सेक्शन नंबर 23 बीच में आया और ये बोलता है कि ये इस तरह के पर्सन है जिनको लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां लेने की जरूरत कहां पे, 22 में और 24 में है। तो ये जो रीड करना है, दिस यू हैव टू रीड साइमल्टेनियसली विद सेक्शन नंबर 22 एंड सेक्शन नंबर 24। क्लियर है आपको। सो जो भी एग्जेम्पशन सेक्शन नंबर 23(2) के अंदर दिया गया है, दैट यू विल हैव टू रीड साइमल्टेनियसली विद सेक्शन नंबर 22 एंड सेक्शन नंबर 24। क्लियर, डन, ओके। नाउ so that's why I have added section exemption under registration, exemption from registration under section 23(2) to be read along with section number 22, correct? Exclusively supplier of goods where aggregate turnover is up to 40 lakhs rupees, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है चार्ट के अंदर। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि वो क्या बोलता है। एक्सेप्ट इफ अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। ये जो 40 लाख का लिमिट हमने देखा था ना, उसके ऊपर भी कंडीशन है। अगर सेक्शन नंबर 24 मेरे को बोलता है कि आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, देन ये 40 lakhs का टर्नओवर मेरे काम नहीं आने वाला है। इवन इफ आई डू अ टर्नओवर ऑफ 1 रुपीज, देन ऑल्सो आई विल हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन, करेक्ट। सो यहां पे यही बोला जा रहा है, रिक्वायर्ड टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। इफ सेक्शन नंबर 24 स्टेट्स दैट यू हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन कंपल्सरीली, देन आपके लिए कोई भी लिमिट का एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगा, आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। Supplier of tobacco, ice cream and edible ice and पान मसाला, they have to take the registration, करेक्ट। उनके लिए कोई लिमिट का मतलब नहीं है। एक्सरसाइजिंग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर 25(3), अगर आपने खुद जाकर रजिस्ट्रेशन ले लिया है, देन तो देयर इज नो पॉइंट ओनली कि आपको ये लिमिट का कोई बेनिफिट मिलने वाला है। देन इंट्रा स्टेट सप्लाईज इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना, पुडुचेरी, ये सारे कौन से हो गए, ये सारे वो स्टेट्स हो गए जो स्पेसिफिक स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर आते हैं, बट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, करेक्ट है। 40 lakhs का लिमिट, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस इन चार्ट। सो ये आपको यहां से पढ़ने का जरूरत नहीं है। दिस यू कैन रीड इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चार्ट इटसेल्फ एंड यू विल अंडरस्टैंड द होल लिमिट्स किसके अंदर क्या है, करेक्ट। इज इट क्लियर टू यू गाइस? करेक्ट है, आपको समझ में आ रहा है व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। सो बेसिकली यहां पे ये बोलता है एग्जेम्पशन नंबर 23(2) क्या बोलता है, a person is exempted from taking registration if is exclusive supplier of goods up to 40 lakhs rupees, except that means ये 40 lakhs का लिमिट के लिए भी there's an exception। अगर मेरे को सेक्शन नंबर 24 बोलता है कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो आई हैव नो चॉइस बट आई टेक द रजिस्ट्रेशन। आई एम नॉट गोइंग टू लुक इनटू द टर्नओवर। अगर मैं टबैको, आइसक्रीम और एडिबल ऑयल, एडिबल आइस एंड पान मसाला में डील करता हूं, देन ऑल्सो आई हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन। इफ आई एम एक्सरसाइजिंग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, तो मैंने खुद ने अगर रजिस्ट्रेशन ले लिया है, then who the hell is going to stop me for the registration from the threshold limit? There is no chance of threshold limit, correct है, right? So this is what is there as far as section number 22 subsection 1 is concerned, correct? So हमने अभी तक क्या देखा, सप्लायर कौन कौन है, who is liable in the state or union territory from where he makes the taxable supply. Similarly, section number 22 subsection 2 is one more situation where it states that supplier registered under an existing law. If the supplier is registered under an existing law कब होता था, because जब ये लॉ बना उस टाइम पे कौन से existing law थे, सर्विस टैक्स, वैट, करेक्ट। सो उस टाइम पे जो भी लोग रजिस्टर्ड थे वैट और सर्विस टैक्स के अंदर, दे आर सपोज टू टेक द रजिस्ट्रेशन, दे आर लायबल टू टेक द रजिस्ट्रेशन। उनकी लायबिलिटी कब से चालू हुई, फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट। अपॉइंटेड डेट कौन सा है एज पर द एक्ट, 22 June 2017। What do you mean by appointed date? Appointed date means the date on which the provision of this act came into force. 1 जुलाई से एक्ट चालू हो गया, बट इसके जो प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी थी, दैट स्टार्टेड फ्रॉम 22 June। आप रजिस्ट्रेशन 22 June से ले सकते थे, करेक्ट है। दैट मीन्स इफ आई एम ए रजिस्टर्ड पर्सन इन द वैट और सर्विस टैक्स इन द प्रीवियस रिजाइम, देन आई एम सपोज टू टेक द रजिस्ट्रेशन ऑन द अपॉइंटेड डेट। उस दिन से मैं लायबल हो गया रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। क्लियर एवरीबॉडी? सो यहां पे हम क्या समझना चाह रहे हैं, अंडर दिस सेक्शन नंबर 22 वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम व्हाट पर्टिकुलर डेट, from which particular day you are becoming liable to take the registration. आप liable हो गए registration लेने के लिए, that means now you will have to fulfill all the procedures which have been mentioned in section number 25, that how you are going to register yourself. Clear everybody?
नाउ थर्ड सिचुएशन क्या हो गया, ये तो क्या हो गया, मैं एग्जिस्टिंग बिजनेस में हूं, ये भी मैं एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर हूं, करेक्ट। दैट मींस ये मैं न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, ये फिर मैं ओल्ड रेजिम से न्यू रेजिम के अंदर आ रहा हूं। थर्ड सिचुएशन कैन बी ट्रांसफरी और सक्सेसर। दैट मीन्स मैंने मेरे बिजनेस को किसी और को ट्रांसफर कर दिया। नाउ अंडर दिस सिचुएशन व्हेन डज अ पर्सन बिकम्स लायबल टू टेक द रजिस्ट्रेशन, करेक्ट। सो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर और सक्सेशन, जिस दिन ये ट्रांसफर होगा या जिस दिन इसका सक्सेशन होगा उस दिन से द सक्सेसर बिकम्स लायबल टू टेक द रजिस्ट्रेशन, करेक्ट है। नाउ सपोज देयर इज अ फैमिली बिजनेस एंड द फादर वॉन्ट्स टू रिटायर। बेसिकली अगर फादर रिटायर हो गया तो उसका सक्सेशन कौन लेगा, उसका सक्सेशन सन ले लेगा। सो दिस सन विल बिकम लायबल टू गेट रजिस्टर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी और द डेट ऑन विच ही टेक्स द सक्सेशन, करेक्ट। नाउ ट्रांसफरर इज अ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर ट्रांसफरर जो है, अगर मैं फादर he is a registered person, then in that scenario what is going to happen, in that scenario the business is transferred as going concern, right है। मेरा business कैसे ट्रांसफर हुआ, गोइंग concern में ट्रांसफर हुआ है। therefore it unutilized ITC कुछ बचा होगा मेरे फादर के पास, मैं रजिस्टर्ड पर्सन था मेरे फादर, सो उनके पास अगर कुछ भी अनयूटिलाइज ITC बचा इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, unutilized ITC in the electronic credit ledger, it should be getting unutilized ITC in the transferer, right है। ट्रांसफरर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, अगर जो ट्रांसफरर के केस, ट्रांसफरर के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर कोई अनयूटिलाइज ITC रहा, देन दैट विल गेट ट्रांसफर टू द ट्रांसफरर और सक्सेसर, करेक्ट है, टू ट्रांसफरी और सक्सेसर, करेक्ट है। सो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है कि अगर सक्सेशन हो रहा है, राइट, अगर सक्सेशन हो रहा है, अगर सक्सेशन हो रहा है यहां पे, दैट मींस यहां पे अगर सक्सेशन हो रहा है तो ये अगर दिस यू हैव टू रीड इट अलोंग विद द ITC, जब आप पढ़ोगे तब जो मेरा ट्रांसफर के बुक्स में जो ITC बचा क्रेडिट में खड़ा था वो ट्रांसफर हो जाएगा नए पर्सन को, राइट, बिकॉज वो ही बिकम्स द डीम रजिस्टर्ड पर्सन नाउ, करेक्ट है। सिंपल है, लॉजिकल है, नो ब्रेनर, सिंपल। नाउ ट्रांसफर और चेंज इन ओनरशिप ऑफ बिजनेस, मैंने मेरा बिजनेस का ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, इंक्लूड्स चेंज और ट्रांसफर इन द ओनरशिप ऑफ बिजनेस ड्यू टू डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर। तो एक सर्कुलर, एक क्वेश्चन रेज हुआ था डिपार्टमेंट के पास, अगर सोल प्रोप्राइटर का डेथ हो गया है, दैट मींस ही इज नॉट ट्रांसफरिंग एज अ गोइंग कंसर्न, वो खुद सडनली मर गया है, राइट। सो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो द बिजनेस इफ इट इज टेकन और चार्ज हैज बीन टेकन और द ओनरशिप हैज बीन टेकन, correct, includes transfer or change in the ownership of business due to death of sole proprietor also, then that will also be included in the concept of transfer or change in the ownership of the business. Clear everybody? Is it clear? Right, now let us go and see the next situation. ये तो हो गया सक्सेशन करना या ट्रांसफर करना। देन देयर कैन बी सिचुएशन जहां पे अमालगमेशन हो रहा है या डीमर्जर हो रहा है, राइट, एक कंपनी के टुकड़े हो रहे हैं या 4-5 कंपनी मिलकर एक कंपनी बन रही है, राइट। सो इन दैट सिचुएशन जो नई कंपनी फॉर्म होगी, फ्रॉम विच डेट ही विल बिकम लायबल टू मेक द रजिस्ट्रेशन, करेक्ट है, लायबल टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, करेक्ट। सो लेट अस गो एंड सी सेक्शन नंबर 22 सबसेक्शन नंबर 4 व्हाट द डेट स्टेट्स, liable from date on which the ROC issues certificate of incorporation. very 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 important to understand, जिस दिन ये न्यू कंपनी को either it is amalgamated company or demerged company, whichever date the ROC issues the certificate of incorporation, from that particular date you become liable for registration. Let us see one illustration, then you will understand what I'm talking about, and then we'll come back again to this particular provision, correct. So A and B limited wanted to amalgamate into A and AB limited, right. A ने बोला, B ने बोला, let's amalgamate and form AB limited. The board of the companies approved the amalgamation on 1st January 20 and 1st March 20. They approached the NCLT. तो 1st January का जो बोर्ड मीटिंग हुआ A कंपनी में, B कंपनी में, they approved कि we can get amalgamated. Then they move on to LCLT on 20th of March for amalgamation, right. NCLT approved their amalgamation on 25th of June. Understand the timeline, correct. 1st January I am talking about amalgamation, board meeting हो गया। 30th June फर्स्ट मार्च बेसिकली अल्टीमेट में गया NCLT के पास। 25th June NCLT अलाउइंग मर्जर का ऑर्डर लेके आ गया। नाउ दे अप्रोच्ड ROC, जैसे मर्जर का टाइम आया दैट यू कैन बेसिकली मर्ज,
सो बेसिकली क्या हो गया, एनसीएलटी ऑर्डर इश्यूड ऑर्डर ऑन 25th of June allowing merger from retrospective date, that is 1st of March 20, correct. Now they approached the ROC for issue of certificate of incorporation of AB Limited. ROC issued the certification of incorporation of AB Limited on 1st of July. उसने कब किया, जब अप्लाई हुआ उसके बाद ही करेगा डेफिनेटली. Hence the two companies will be liable for registration from 1st July, that is the date on which the ROC issued the certificate of incorporation. Clear है? I hope this is clear to you guys. So section number 22(4) क्या बोलता है, ट्रांसफरी इन केस ऑफ अमालगमेशन और डीमर्जर कब होगा, जिस टाइम पे ही बिकम्स लायबल फ्रॉम द डेट ऑन विच द आरओसी इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. करेक्ट है. राइट है. सो एज ऑफ नाउ व्हाट वी हैव कवर्ड इज सेक्शन नंबर 22. सेक्शन नंबर 22 क्या बोलता है हमको, इट एक्सप्लेन्स अस वेरियस सिचुएशंस where a person becomes liable to take the registration. करेक्ट है. यहां पे इसने हमको क्या बोला है कि पर्सन की लाइबिलिटी कब आती है रजिस्ट्रेशन लेने की. करेक्ट. सो पहला हमने देखा सप्लायर जब वो स्टेट में ट्रांजैक्शन कर रहा है, इंट्रास्टेट जब ट्रांजैक्शन कर रहा है, देन वी सॉ 3 लिमिट्स, 10 lakhs, 20 lakhs एंड 40 lakhs का लिमिट. करेक्ट. देन वी सॉ सप्लायर जो प्रीवियस रेजिम में रजिस्टर्ड है उसके लिए क्या होगा, अपॉइंटेड डेट से होगा. देन वी सॉ द ट्रांसफरी सक्सेसर के केस में क्या होगा, इफ द बिजनेस इज गेटिंग ट्रांसफर्ड, मेरे बेटे को ट्रांसफर हो रहा है. करेक्ट है. एंड इट इज ट्रांसफरिंग एज अ गोइंग कंसर्न, देन फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर और सक्सेशन यहां पे क्या होगा, इट विल बी गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज द सक्सेसर इज लायबल टू टेक द रजिस्ट्रेशन. करेक्ट. इफ इट इज द कंपनी विच इज गेटिंग अमालगमेटेड और डीमर्ज, तो जिस दिन आरओसी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया, फ्रॉम दैट डे द न्यू कंपनी विल बिकम लायबल फॉर द डेट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. Clear everybody? Now let us go and see the other aspects. Other aspect क्या बोलता है अभी, सेक्शन नंबर 23 क्या बोलता है, पर्सन हु आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. एंड सेक्शन नंबर 24 क्या बोलता है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. करेक्ट. सो वी हैव सीन कि सेक्शन नंबर 23 को कैसे के साथ पढ़ना है, 24 के साथ पढ़ना है. करेक्ट है. सो लेट अस फर्स्ट सी 23 क्या बोलता है एंड देन विल जंप टू 24 एंड अगेन कम बैक टू सेक्शन नंबर 23. करेक्ट. तो सेक्शन नंबर 23 के अंदर क्या बोलता है, सबसेक्शन 1 23(1) टॉक्स अबाउट any person engaged exclusively in the business of supplying goods or services or both that are not liable to tax or wholly exempt from tax, जिसपे टैक्स लगना ही नहीं है, और मैं एक्सक्लूसिवली वही बिजनेस कर रहा हूं जिसपे टैक्स, वही बिजनेस कर रहा हूं, वही सप्लाई कर रहा हूं. पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज हु आर आइदर नॉट लायबल टू टैक्स, जिसपे 0 रेट नील रेट लगता है, या फिर दोज हु आर ओनली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. अगर यहां पे कॉन्सेप्ट सिंपल है दैट अगर कोई बंदा ऐसा काम करता है जहां पे उसको टैक्स का जरूरत ही नहीं है, टैक्स कलेक्ट करने का और पेमेंट करने का जरूरत ही नहीं है, देन टू अवॉइड द एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्ट द गवर्नमेंट हैज टोल्ड बॉस, अगर आप खाली यही काम कर रहे हो एक्सक्लूसिवली, देन यू प्लीज डू नॉट टेक द रजिस्ट्रेशन ओनली. राइट. आप रजिस्ट्रेशन ही मत लो. करेक्ट. Is it clear to you guys? करेक्ट है. सो यहां पे सिचुएशन आया दैट इफ यू आर डूइंग एक्सक्लूसिवली दैट इज निल रेटेड या होली एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, देन यू आर नॉट लायबल टू टेक द रजिस्ट्रेशन. अगर आप खाली यही काम कर रहे हो एक्सक्लूसिवली निल रेटेड, होली एग्जेम्प्ट, नॉन टैक्सेबल. नाउ सपोज नॉन टैक्सेबल के अंदर आप बोलते हो अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. नाउ इन केस ऑफ अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इफ यू गो टू बाय अल्कोहल इन द अल्कोहल शॉप एंड इफ यू आस्क फॉर पीनट्स, तो वो देता है कि आपको, राइट, he will not give you. Why? Because it is going to be called as taxable supply. So जैसे ये taxable supply हो जाएगा, he will have to take the registration and he will have to make the payment of GST, collect and make the payment of GST on these peanuts. वो collect भी करेगा और GST पे भी करेगा. That means अगर वो खाली alcohol liquor for human consumption करता है exclusively, then he is not liable to take the registration. But if he is doing something else along with that, then he is going to take the registration number और जो भी उसके ऊपर आपका GST आएगा, he will have to collect and make the payment to the government. Clear everybody? Done. Now let us see second situation. right है. So हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, we are seeing certain situations जिस तरह के बंदों को रजिस्ट्रेशन लेने की लाइबिलिटी है ही नहीं. करेक्ट है. अगर मैं एक्सक्लूसिव काम करता हूं किसका,
नॉन टैक्सेबल का, not liable to tax का, और wholly exempt from tax का. That means if I'm doing exclusively nil rated, if I'm doing exclusively exempt, और if I'm doing non taxable supplies, तो मेरे को ना ही कलेक्ट करना है ना ही पेमेंट करना है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन क्यों बढ़ाऊं? दैट इज वाई गवर्नमेंट ने बोला 23(1) के अंदर आप यू आर नॉट लायबल टू टेक द रजिस्ट्रेशन, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर यू टू टेक द रजिस्ट्रेशन. क्लियर एवरीबडी? सिमिलरली 23(2) क्या, 23(1)(b) क्या बोलता है? एन एग्रीकल्चरिस्ट, अगर मैं खेडूत हूं, राइट, एन एग्रीकल्चरिस्ट, Now he can be only individual या HUF, कंपनीज यहाँ पे नहीं चलेगा. An agriculturist to the extent of supply of produce out of cultivation, मैं कल्टीवेट करके कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, उसकी अगर मैं सप्लाई कर रहा हूं तो दैट सप्लाई इज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई. करेक्ट है? उसके अलावा मैं कुछ और सप्लाई करता हूं, देन इट बिकम्स अ टैक्सेबल सप्लाई. करेक्ट? सो लेट अस सी दिस आल्सो नाउ. व्हाट डू यू मीन बाय एन एग्रीकल्चरिस्ट? एग्रीकल्चरिस्ट मीन बाय ओन या फैमिली लेबर. मैं कैसे कर रहा हूं कल्टीवेशन? मैं खुद कर रहा हूं या फैमिली लेबर से करवा रहा हूं, और मैं किसी सर्वेंट से पगार देके करवा रहा हूं. दैट मीन्स इफ आई एम डूइंग इट माई सेल्फ, माई फैमिली मेंबर्स, और बाय सर्वेंट ऑन वेजेस. करेक्ट है? और बाय हायर्ड लेबर who are under the supervision of person or family. Correct? Or by hired labor who are under the supervision of फैमिली. करेक्ट? दैट मीन्स ये जो वेजेस हैं या हायर्ड लेबर है, उसका देख रेख कौन कर रहा है कि बराबर काम हो रहा है कि नहीं कर रहा हो रहा है, दैट हैज बीन सीन बाय द पर्सन हिमसेल्फ और बाय द फैमिली सुपरविजन. करेक्ट है? सो अगर इस तरह की एक्टिविटी होती है, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर एक्टिविटी. और उसमें से जो कल्टीवेट करूंगा मैं, अगर उसका सप्लाई करता हूं, देन आई एम नॉट लायबल टू टेक द रजिस्ट्रेशन. सिंपल लॉजिक. इसका मतलब ये समझ लो, आई नीड नॉट होल्ड द लैंड इन माई नेम. करेक्ट है? मैं जरूरी नहीं है कि मैं लैंड मेरे नाम पे होना चाहिए. इट इज नॉट नेसेसरी दैट लैंड शुड बी ऑन माई नेम. इफ आई एम एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब क्या हो गया? मैं यहाँ पे कल्टीवेट कर रहा हूं, मैं यहाँ पे खेती कर रहा हूं. कौन कौन कर सकता है? माई सेल्फ, या फिर माई फैमिली मेंबर, या फिर अंडर सुपरविजन ऑफ माई सेल्फ और फैमिली मेंबर आई हैव हायर्ड सर्वेंट्स और वेजेस, सर्वेंट्स और हायर्ड लेबर. देन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एन एग्रीकल्चर. सो इंडिविजुअल एचयूएफ क्या बोलेंगे इसके अंदर? एग्रीकल्चर बोलेंगे. और जो भी ये खेती से उपज आ रहा है उसकी सप्लाई पे आपको जीएसटी नहीं लगने, आपको रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत ही नहीं है. क्लियर? एक सर्कुलर आया है इसके रिगार्डिंग. लेट अस सी द सर्कुलेशन. सर्कुलर क्या क्लैरिफिकेशन दे रहा है? कमीशन एजेंट अंडर एपीएमसी एक्ट. राइट है? हमने जब कमीशन एजेंट की बात की थी, हमने ये देखा था कि एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है कमीशन एजेंट, और एक होता है बायर. नाउ सपोज द कमीशन एजेंट अंडर एपीएमसी एक्ट मेकिंग सप्लाईज ऑन बिहाफ ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट. अगर ये जो बंदा है प्रिंसिपल, ये एग्रीकल्चरिस्ट है, एज पर दिस डेफिनेशन वो एग्रीकल्चरिस्ट है. दैट मीन वो खुद के फार्म पे या खुद के लैंड पे या खुद के लेबर के साथ अगर कुछ काम कर रहा है, देन ही बिकम्स एन एग्रीकल्चरिस्ट. तो उसका जो भी सप्लाई होगा, ये क्या होगा? ही इज नॉट लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन. अगर वो लायबल नहीं रजिस्ट्रेशन लेने के तो जीएसटी लगाएगा ही नहीं. सो अगर कमीशन एजेंट भी जो यहां पे है, इफ ही इज making supplies on behalf of this agriculturist who is not a taxable person, then what is going to happen? Let us see. Then he is also not liable for compulsory registration. जब मैं सेक्शन नंबर 24 देखूंगा, उसके अंदर एक सिचुएशन आता है जहां पे ये बोला जाता है कि अगर आप एजेंट हो और आप प्रिंसिपल का बिजनेस कर रहे हो, देन आपके ऊपर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का क्लॉज लगता है. करेक्ट? बट अगर आपका प्रिंसिपल जो है, ही इज हिमसेल्फ नॉट अ टैक्सेबल पर्सन, तो जब वो आपको सप्लाई करेगा तो आपको वो जीएसटी लगा के नहीं देगा. अगर वो आपको जीएसटी लगा के नहीं लेगा तो आप आईटीसी नहीं ले पाओगे, और अगर आप आईटीसी नहीं ले पाओगे तो उसका बेनिफिट आप आगे नहीं पास कर पाओगे. करेक्ट है? सो सिमिलरली इफ यूर एन एजेंट who is supplying goods on behalf of the person who is a non-taxable person or who is a not taxable person, then as an agent also I am not liable for compulsory registration. Just give me 1 minute. So let us do now one illustration as far as the institute module is concerned. हम एक illustration करेंगे institute के module से. Let us see what is this institute module speaks about, right? एक illustration है. देशबंधु is an agriculturist engaged in the cultivation of wheat. वो क्या करता है? Cultivation of wheat करता है. In his field,
in the state of Punjab. पंजाब में खेती का काम कर रहा है. He was exclusively engaged in supply of wheat cultivated in his field. वो यही काम करता था कि जो खेती में मेरे wheat बन रहा है मैं उसको सप्लाई कर रहा हूं, राइट. इन द प्रीवियस ईयर, तो पिछले साल में यही काम करता था. अब उसका मार्केट बढ़ गया, उसके कॉन्टैक्ट्स बढ़ गए. सो दस ही वॉज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज ही वॉज एक्सक्लूसिवली engaged in supply of produce out of cultivation of his land. करेक्ट है. तो जो मैंने प्रोड्यूस किया मैं वही बेच रहा था, तो मैं क्या था, लायबल नहीं था रजिस्ट्रेशन लेने के लिए. बट इन द करेंट ईयर क्या हुआ, बिकॉज यहां पे उसके कॉन्टैक्ट्स बन गए, ही स्टार्टेड डूइंग द बिजनेस. So in the current year, he decides to start trading. Correct है? That means he is not exclusively engaged now. He is adding his activity. He is doing trading in rice apart from supplying his wheat produce. Correct है? Wheat के साथ साथ राइस का ट्रेडिंग. राइस किसी से खरीदूंगा बेचूंगा, राइस किसी से खरीदूंगा बेचूंगा. His turnover in the current year is 32 lakhs from the supply of wheat, जो उसने खुद ने प्रोड्यूस किया है. That means जो उसने खुद ने प्रोड्यूस किया है उसका 32 lakhs का अमाउंट हो गया. और जो राइस की ट्रेडिंग कर रहा है उसका टर्नओवर कितना हो गया, 9 लाख रुपीस हो गया. और ये कहां पे, स्टेट कौन सा है, पंजाब है. सिंस ही इज एंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ राइस ऑल्सो, वो किस में एंगेज है, राइस के अंदर एंगेज है. एंड ही इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 23 अबव, तो 23 के अंदर वो नहीं ले पाएगा एग्जेम्पशन. व्हाई, बिकॉज ही इज डूइंग समथिंग मोर देन द कल्टी जो उसने खुद ने प्रोड्यूस किया. करेक्ट. द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल टू पर्सन exclusively engaged in supply of goods in the state of Punjab is 40 lakhs. तो जब मैंने यहाँ पे लिमिट देखा था, लेट अस सी, यहाँ पे जब मैं लिमिट टर्नओवर की बात कर रहा था, यहाँ पे आपको कहाँ पे पंजाब दिख रहा है, पंजाब विल कम इन द अदर स्टेट्स. तो अदर स्टेट्स के अंदर इफ आई एम डूइंग एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स, द लिमिट इज हाउ मच, 40 lakhs rupees. So in this example what it states is that it is stating is what, since he is engaged in the trading of rice also, he is engaged in trading of rice also, that means वो गुड्स का ही काम कर रहा है. he is not covered under section 23, तो वो लायबल तो है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए. करेक्ट है. एंड द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल टू अ पर्सन एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स. तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मैं ऐसा बंदा नहीं हूं नॉट लायबल, तो मैं लायबिलिटी की रजिस्ट्रेशन की लिमिट देखूंगा. दैट मींस इफ 23 के अंदर मैं नहीं फॉल करता हूं, देन आई एम जंपिंग टू सेक्शन नंबर 22 विच स्टेट्स दैट आप स्टेट ऑफ पंजाब में रजिस्टर्ड हो, आप खाली गुड्स का काम करते हो, तो आपका मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है, 40 लाख रुपीज है. अगर आप 40 लाख के ऊपर आप काम करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है. करेक्ट है. नो, सेक्शन 23 ने मेरे को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, तो मेरे को रजिस्ट्रेशन तो लेना है. तो जब मेरे को सेक्शन 23 ने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, मैं 22 के पास जाऊंगा. 22 के जाके बोलूंगा बॉस मेरे को बताओ कि लिमिट कितना है. तो 22 के अंदर जब मैं जाता हूं तो मैं देखता हूं कि मैं कहां से हूं, पंजाब से हूं. पंजाब में लिमिट कितना है, 40 लाख रुपीज का लिमिट है. सो एग्रीगेट टर्नओवर मेरा क्या हुआ देशबंधु का इन द करेंट ईयर इज हाउ मच, 32 लाख रुपीज. एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर क्या आता है, वो गुड्स भी आता है जिस पर टैक्स नहीं लगने वाला है. करेक्ट है. सो एग्रीगेट टर्नओवर मेरा क्या हो गया, 32 लाख रुपीज ऑफ द व्हीट एंड 9 लाख रुपीज ऑफ द राइस which exceeds the threshold limit, thus he will be liable to registration. Clear आपको everybody? Is this example clear to you guys? Correct है, right? So now we will see that section number 23 subsection 1 ने क्या बोला. section number 23 subsection 1 ने हमको ये समझाया, any person engaged in the supply of business of goods and services of both that are not liable to tax or wholly exempt from tax. तो बेसिकली जिस गुड्स और सर्विसेज के अंदर सप्लायर को टैक्स ना कलेक्ट करना है ना पेमेंट करना है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन क्यों बनाया जाए. तो स्पेसिफिकली अगर आप यही काम कर रहे हो एक्सक्लूसिवली, देन यू आर नॉट लायबल टू टेक द रजिस्ट्रेशन. देन वी स्पोक अबाउट एन एग्रीकल्चरिस्ट. अगर मैं एग्रीकल्चर एज एन इंडिविजुअल एचयूएफ हूं, जो भी मैंने मेरे खेत में प्रोड्यूस किया है, जो भी मैंने कल्टीवेट करके प्रोड्यूस किया है, फॉर दैट सप्लाई आई एम नॉट लायबल टू टेक द रजिस्ट्रेशन. बट इफ आई एम डूइंग समथिंग मोर देन दैट, दैट मीन्स जो हमने एग्जाम्पल के अंदर देखा, इफ आई डूइंग समथिंग मोर देन दैट, then that will be included in my aggregate turnover. और फिर मैं लिमिट देखूंगा सेक्शन 22 का लिमिट क्या बोलता है, and accordingly I will see whether I am liable to take the registration or not liable to take the registration. Correct है. Similarly we saw a circular on the commission agent. Commission agent under APMC Act, वो क्या बोलता है, अगर मेरा प्रिंसिपल रजिस्टर्ड है और मैं एज अ प्रिंसिपल के सप्लाई पे गुड्स बेचता हूं मिस्टर बी को, तो अगर मैं खुद के नाम पे ही बेचता हूं, तो ये जब प्रिंसिपल सप्लायर ने सप्लाई किया होगा, ये सप्लाई को सप्लाई के डेफिनेशन के अंदर कहा जाएगा, और इस पे जो भी जीएसटी लगेगा उसका मेरे को आईटीसी मिल सकता है. अगर मेरे को इसका आईटीसी मिल सकता है तो मैं आईटीसी पास भी कर सकता हूं. राइट. सो इन दैट सिचुएशन अगर ये प्रिंसिपल एजेंट लायबल नहीं है जीएसटी के लिए, देन द कमीशन एजेंट इज ऑल्सो नॉट लायबल फॉर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. क्लियर है. सो कमीशन एजेंट अंडर एपीएमसी मेकिंग सप्लाईज ऑन बिहाफ ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट,
इफ इज अ नॉन टैक्सेबल पर्सन, अगर वो रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है, राइट, अगर एग्रीकल्चरिस्ट खाली वही माल बेचता है जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, देन ही इज नॉट लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन. सो इन दैट सिचुएशन अगर एग्रीकल्चरिस्ट टैक्सेबल पर्सन नहीं है, देन नॉट लायबल फॉर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. दैट मीन्स इन दिस सिनेरियो अगर मेरा प्रिंसिपल वो खुद ही कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड नहीं है, देन द एजेंट इज ऑल्सो नॉट लायबल फॉर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? क्लियर है? Then we saw an example also. Now there is section number 22 का second, right? 23 का section, sorry, section 23 subsection 2. What does this state? Notified categories of persons. इसने कुछ category of लोग मतलब persons. He is not talking about goods and services. It is talking about the persons. Notified categories of persons exempt from registration to be read with section number 23 and section number 24. क्लियर है आपको? राइट है. तो एक पार्ट हमने देखा था 23(2) का जो हमने ऊपर कवर किया सेक्शन नंबर 22 के साथ, राइट. दिस एग्जेम्पशन वाला 40 लाख रुपीज का जो लिमिट था वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया. बैलेंस जो होगा हम करेंगे किसका? सेक्शन नंबर 24 के साथ. करेक्ट है? सो लेट अस गो एंड जंप टू सेक्शन नंबर 24 एंड देन विल कम बैक अगेन टू सेक्शन नंबर 23(2). करेक्ट. सो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या बोलता है? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या बोलता है? दैट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या हो गया? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो बंदा हो गया, सपोज इफ आई एम फ्रॉम मुंबई, आई गो टू दिल्ली ऑन अ रैंडम बेसिस एंड आई सेल द गुड्स देयर. करेक्ट है? अगर मैं ऐसा कुछ काम करता हूं, देन आई बिकम अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई. Excuse me, making taxable supplies. Correct? So section 2 subsection 20, casual taxable person means what? Casual taxable person means a person who occasionally undertakes transaction involving supply in the course of furtherance of business, whether as a principal, agent or in any other capacity in the state or union territory where he has no fixed place of business. मैं यहाँ से सुबह गया यहाँ से गुजरात जाके मैंने माल बेच दिया और मैं वापस आ गया. करेक्ट है? दैट मीन्स मेरा कोई प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है गुजरात के अंदर, राइट. प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है. सो इन दैट सिचुएशन अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज, उसको कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. उसका क्या मतलब? कंपल्सरी लेना मतलब क्या हो गया? सो इन दैट मीन्स दैट he will have to take the compulsory registration. That means वो आएगा, स्टेट में रजिस्ट्रेशन करेगा, जो भी गुड्स बेचेगा उसमें स्टेट को टैक्स पे करेगा और टाटा बाय बाय होगा. करेक्ट है? दैट मीन्स जहां पे गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं वहीं पे जीएसटी लगने वाला है, हमको पता है डेस्टिनेशन बेस्ड के अंदर. बट अगर कोई बाहर वाला बंदा यहाँ पे आके कोई एग्जीबिशन में आता है और वो अपना माल बेचता है, तो वो इन दैट सिचुएशन कंजम्पशन तो यही स्टेट में हो रहा है, गुजरात के अंदर ही हो रहा है. तो गुजरात गवर्नमेंट क्या बोलेगी? बॉस आप तो महाराष्ट्र के बंदे हो, आप कैजुअली यहाँ पे आके बिजनेस कर रहे हो तो नहीं चलेगा, आपको एक टेम्पररी कैजुअल रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा और ऑन दैट बेसिस आपको जीएसटी का पेमेंट करना ही पड़ेगा टू गुजरात स्टेट. करेक्ट एवरीबॉडी? सो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कोई टैक्सेबल सप्लाई करता है, देन इन दैट सिचुएशन he is exempt, then he has to take the registration, but he has an exemption under 23(2). हमने देखा 23(2) के अंदर क्या है? it has to be read with 22 and 24. so एक exemption नीचे आ रहा है 23(2), हैंडीक्राफ्ट और क्राफ्ट्समैन गुड्स अप टू 20 lakhs और 10 lakh whichever is applicable. करेक्ट है? आप जिस स्टेट के अंदर हो और अगर आप हैंडीक्राफ्ट बनाते हो, क्राफ्ट्समैन का गुड्स बनाते हो, तो आपका लिमिट क्या है? 20 lakhs और 10 lakhs का लिमिट बरकरार है. क्लियर है आपको? राइट है? दैट मीन्स अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, मैं यहाँ से कोई गुड्स उठाता हूँ हैंडीक्राफ्ट, उसको मैं ले जाके बेचता हूँ कहाँ पे? राजस्थान के अंदर. करेक्ट? सो अगर मैं राजस्थान के अंदर बेच रहा हूँ, आई एम अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, मैं महाराष्ट्र का बंदा हूँ, आई एम नॉट रजिस्टर्ड इन राजस्थान. सो अगर मैं महाराष्ट्र का बंदा, अगर मैं जाता हूँ राजस्थान में और इफ आई एम सेलिंग हैंडीक्राफ्ट, तो हैंडीक्राफ्ट को 23(2) के अंदर एग्जेम्प्ट किया गया है, जिसका लिमिट दिया 20 लाख रुपीज. अगर मैं हैंडीक्राफ्ट 20 लाख रुपीज तक का बेचता हूँ, देन आई नीड नॉट टेक द रजिस्ट्रेशन in the state of Gujarat as well. But if I'm planning to sell more, then मेरे को कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा. क्लियर एवरीबॉडी? करेक्ट है? सो पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस. तो पहला सिचुएशन क्या हो गया? पर्सन, सॉरी आई मिस द फर्स्ट सिचुएशन. 24 के अंदर पहला सिचुएशन ये है, पर्सन्स मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई. करेक्ट है? पर्सन्स मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई.
तो पहले जो हमने थ्रेशोल्ड लिमिट देखी थी 40, 20 एंड 10, दैट मीन्स बेसिकली दोज लिमिट्स आर फॉर द इंटरस्टेट सप्लाई एंड नॉट फॉर दोज आर फॉर इंट्रास्टेट सप्लाई, नॉट फॉर इंटरस्टेट सप्लाई. अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो देन आपको मैंडेटरली जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा. Persons making in any interstate supplies, taxable supplies, correct. एग्जेम्पशन क्या है 23(2) का इसके अंदर, इफ माई एग्रीगेट टर्नओवर इज बिलो 20 लाख रुपीज और 10 लाख रुपीज वॉट एवर इज एप्लीकेबल. सप्लाई ऑफ सर्विस अगर इंटरस्टेट होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस अगर होगा इंटरस्टेट होगा, अप टू 20 लाख रुपीज या 10 लाख रुपीज को एग्जेम्प्ट किया गया. करेक्ट है. तो पहले वाली सिचुएशन में क्या था, अगर मैं गुड्स और सर्विसेज बेचता हूं देन मेरे को 20 लाख का लिमिट था. अगर मैं खाली गुड्स बेचता हूं 40 लाख का लिमिट है. बट इन केस ऑफ सर्विसेज क्या हो गया, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि कितना सर्विस हुआ नहीं हुआ. राइट. सो इसीलिए उन्होंने क्या किया है, that means they have created an exemption in section 23(2) which states that if you want to supply of services and you're giving these services interstate, then up to the aggregate turnover 20 lakhs or 10 lakhs rupees आप exempt हो, उसके बाद आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. सिमिलरली अगर मैं हैंडीक्राफ्ट्स और क्राफ्ट्समैन गुड्स का सप्लायर हूं, that means if I'm supplying the handicrafts and craftsman goods, then I'm the person who is not liable to take the registration. correct है. sorry, compulsory registration मेरे को लेना पड़ेगा. correct. is it clear. तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, पर्सन्स मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई और उसका एग्जेम्पशंस देख रहा हूँ. करेक्ट. सो अगर मैं हैंडीक्राफ्ट वाला बंदा हूँ, क्राफ्टमैन वाला बंदा हूँ और मैं समझ बॉम्बे से लेके दिल्ली में जाके कुछ मैं माल सप्लाई करता हूँ, सो वेदर आई शुड बी लायबल टू टेक द रजिस्ट्रेशन बिकॉज ये इंटरस्टेट सप्लाई है. नहीं, अगर मेरा टर्नओवर 20 लाख 10 लाख के नीचे है एंड आई एम डूइंग हैंडीक्राफ्ट एंड क्राफ्टमैन गुड्स का सप्लाई, देन आई नीड नॉट टेक द रजिस्ट्रेशन. क्लियर एवरीबॉडी. Is it clear to you guys? Similarly, if I'm doing interstate supply of services to a registered person by a job worker, सप्लाई कौन कर रहा है, जॉब वर्कर कर रहा है रजिस्टर्ड पर्सन को. अगर उसका जॉब वर्कर का एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख से ऊपर है देन उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा. अगर ऑप्टिंग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, अगर किसी बंदे ने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया तो भी ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी. और मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ और सिल्वर स्मिथ वेयर्स, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा. क्लियर एवरीबॉडी. आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस. ओके, जस्ट गिव मी 5 minutes ब्रेक. आई विल बी जॉइनिंग यू सून. जस्ट गिव मी 5 minutes ब्रेक प्लीज.
Okay, welcome back. So let's get back again. So यहाँ पे हम ये देख रहे थे, वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हम सेक्शन नंबर 24 के अंदर क्या देख रहे हैं, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, करेक्ट है. तो अंडर सेक्शन नंबर 24 व्हाट वी आर डूइंग इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन किन किन लोगों को लेना है. सेक्शन नंबर 24 क्या बोलता है कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन उन लोगों को लेना है पर्सन्स मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई. अगर कोई बंदा इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है तो उनको क्या करना है, उनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है. उसके लिए एग्जेम्पशन क्या दिया 23(2) के अंदर, अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख के नीचे है या 10 लाख के नीचे है तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में इंटरस्टेट को भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है अप टू 20 lakhs and 10 lakhs रुपीज, करेक्ट. हैंडीक्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्समैन गुड्स सप्लायर, they are not required to take the registration even if they are doing an interstate supply. Interstate supply of services to a registered person by a job worker, अगर कोई registered person को जॉब वर्कर अगर कोई सप्लाई देता है, सर्विस प्रोवाइड करता है इंटरस्टेट, राइट है. मैं महाराष्ट्र से लेके मैंने गुजरात में किसी जॉब वर्कर को माल बेचा, कोई चीज माल भेजा कोई काम करने के लिए, राइट. सो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो ही इज लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन, बट उसको स्पेसिफिकली एग्जेम्पशन दिया गया है. बट ये एग्जेम्पशन उन जॉब वर्कर को एप्लीकेबल नहीं होगा जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है या 10 लाख के ऊपर है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट. एंड अगर वो जॉब वर्कर ने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है या फिर मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिटेलिंग रिलेटिंग टू ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ एक्सेट्रा. अगर कोई गोल्ड ज्वेलर है, गोल्ड स्मिथ है, सिल्वर स्मिथ है या सिल्वर स्मिथ वॉच बनाने वाला है, यूटेंसिल बनाने वाला है, तो उनके लिए ये लिमिट की एप्लीकेबल, ये एग्जेम्पशन का एप्लीकेबिलिटी नहीं है, करेक्ट है. सो बेसिकली हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, सेक्शन नंबर 24 क्या बोलता है, ऐसे बंदे जो इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं उनको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है. बट ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन को हम रीड करेंगे सेक्शन नंबर 23 के हिसाब से. 23 क्या बोलता है, पर्सन हु आर नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन. तो 23(2) के अंदर कुछ नोटिफाइड कैटेगरीज ऑफ पर्सन बताए हैं जिनको बोला गया है कि दे आर नॉट लायबल टू टेक द रजिस्ट्रेशन, करेक्ट है. सो इसके साथ साथ हमको ये पढ़ना है. तो 23(2) के अंदर क्या एग्जेम्पशन दिया गया है, इफ माई एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन 20 lakhs or 10 lakh rupees, if my aggregate turnover is less than 20 lakh rupees or 10 lakh rupees, and if I'm doing an interstate supply of services, मैं क्या कर रहा हूं, गुड्स की बात नहीं हो रही, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात कर रहा हूं, राइट. अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख के नीचे है या 10 लाख के नीचे है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट, एंड इफ आई एम गिविंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज अप टू 20 lakhs or 10 lakhs रुपीज, बिकॉज वो लिमिट के नीचे रहना पड़ेगा, देन आई एम नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन एज पर एग्जेम्पशन 23(2), इवन इफ 24(1) टेल्स मी दैट आई हैव टू रजिस्टर, बट वो थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट मेरे को 23(2) दे रहा है इसके अंदर, करेक्ट है. सेकंड एग्जेम्पशन 23(2) क्या देता है, इफ आई एम डूइंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट और क्राफ्ट्समैन गुड्स, राइट है. गुड्स इन जनरल तो आपको लेना ही पड़ेगा, करेक्ट है. बट अगर मैं हैंडीक्राफ्ट और क्राफ्ट्समैन गुड्स देता हूं, सप्लायर हूं, देन आई विल नॉट बी लायबल टू टेक द रजिस्ट्रेशन. मेरा पैन नंबर ई-वे बिल में काम आ जाएगा, करेक्ट है. थर्ड, इफ आई एम एन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और मेरा काम क्या है, जॉब वर्किंग का काम है और मेरा लिमिट 20 लाख के नीचे है और मैं सर्विस किसको दे रहा हूं, रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा हूं, देन ऑल्सो एज अ जॉब वर्क का जो हमने ऊपर डेफिनेशन देखा था, दैट अगर जॉब वर्कर के काम में भी अगर मैं मेरा प्रिंसिपल जो है टैक्सेबल पर्सन है तो मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. बट इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जहां पे जॉब वर्क सर्विसेज देता है, राइट है, जॉब वर्क विल गिव यू ऑलवेज सर्विसेज, करेक्ट. सो इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू अ रजिस्टर्ड पर्सन बाय द जॉब वर्कर, राइट. सो यहां पे एक प्रिंसिपल है महाराष्ट्र के अंदर, यहां पे एक जॉब वर्कर है गुजरात के अंदर. नाउ ये जो बंदा है रजिस्टर्ड पर्सन है, बट ये जो जॉब वर्कर है इसका थ्रेशोल्ड, इसका सपोज इसका टर्नओवर है 10 लाख रुपीज ओनली, से 12 लाख रुपीज ओनली, राइट. गुजरात में थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है, 20 lakhs का लिमिट है, बोलता है वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज का, करेक्ट. सो इन केस ऑफ गुजरात में 20 lakhs का लिमिट है, तो ये बंदा जो जॉब वर्कर है इज नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड. नाउ ही इज नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड, व्हाई, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 23(2). क्लियर है. ये क्या बोलता है एग्जेम्पशन, इफ माय एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन 20 lakh rupees and if I'm providing interstate supply of services to a registered person by a job worker, then the job worker is not required to take the registration. Clear everybody? Now ये जो 20 lakhs का लिमिट है जॉब वर्कर का, ये
या फिर ये जो एग्जेम्पशन है 23(2) का, सॉरी जो एग्जेम्पशन है 23(2) का, ये कौन से सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होगा? इन केस ऑफ जॉब वर्कर ओनली, इन केस इफ माई एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 20 lakhs और 10 lakh रुपीज, डेफिनेटली यहीं पे कंडीशन ब्रीच हो जाएगा, तो मेरे को आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं है। अगर एज अ जॉब वर्कर मैंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया है, देन ऑल्सो आई हैव टेकन द रजिस्ट्रेशन, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे को तो उसका लिमिट मैंने ले ही लिया है तो कोई मतलब ही नहीं है, करेक्ट। और थर्ड, व्हेन आई मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जो मैं सर्विस दे रहा हूं दैट इज इन रिलेशन टू व्हाट, ज्वेलरी मेकिंग, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ और यूटेंसिल्स, अगर मैं वो सर्विस दे रहा हूं तो मेरे को डेफिनेटली मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। क्लियर एवरीबॉडी? डन? इज इट क्लियर टू यू गाइस? सो पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई, पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अगर उसका टर्नओवर 20 लाख के अंदर है तो मेरे को 23(2) एग्जेम्प्ट करता है रजिस्ट्रेशन लेने से। सिमिलरली अगर मैं हैंडीक्राफ्ट और क्राफ्ट्समैन गुड्स की बात करता हूं, मैं हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर हूं, मैं राजस्थान से जाता हूं महाराष्ट्र में, बिकॉज राजस्थान में इतना कंजम्पशन नहीं होगा जितना महाराष्ट्र में कंजम्पशन होगा, तो मेरे को तो माल बेचना है। द गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट हैंडीक्राफ्ट, द गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट क्राफ्ट्समैन, करेक्ट, सो दैट द एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड इन द बैकवर्ड स्टेट। सो इसी वजह से इसको भी बोला गया है कि अगर मैं हैंडीक्राफ्ट और क्राफ्ट्समैन का गोल्ड सप्लाई करता हूं आउटसाइड द स्टेट, इंटरस्टेट, देन ऑल्सो 23(2) मेरे को एग्जेम्प्ट करता है। सिमिलरली अगर मैं इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज करता हूं एज अ जॉब वर्कर टू रजिस्टर्ड पर्सन, देन ऑल्सो अगर मेरा टर्नओवर लिमिट 20 लाख के नीचे है, 10 लाख के नीचे है, और अगर मैं ज्वेलरी वाला लेबर का काम नहीं करता हूं, देन आई एम नॉट लायबल टू टेक द रजिस्ट्रेशन। क्लियर एवरीबॉडी? डन? इज इट क्लियर? सो ये सब में आपको क्लियर आ गया। 24(1) क्या बोलता है? पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज, राइट है। तो पहला हमने क्या देखा था 22(1) के अंदर, हमने क्या देखा था? सप्लायर लायबल इन द स्टेट। यहां पे हम क्या देख रहे थे? खाली स्टेट के अंदर का ट्रांजैक्शन देख रहे थे, इंट्रा स्टेट का ट्रांजैक्शन, करेक्ट। जब 24 के अंदर हम गए तो हमने क्या देखा? इंटरस्टेट, एंड यहां पे क्या बोलता है? इट इज टॉकिंग ओनली अबाउट व्हाट? इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। किसको एग्जेम्प्ट किया गया? अगर मैंने कोई भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज किया, राइदर गुड्स और सर्विसेज, तो मेरे को लायबल है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का। बट इन केस ऑफ सर्विसेज दे हैड सर्टेन एग्जेम्पशन गिवन बाय 23(2), करेक्ट है? इज इट क्लियर? सो 22 नंबर क्या बोलता है? इट इज टॉकिंग अबाउट योर टर्नओवर इन द स्टेट्स। जैसे आप स्टेट के बाहर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन करना शुरू कर देते हो, देन या तो आप गुड्स सप्लाई करते हो, सर्विस सप्लाई करते हो, तो गुड्स के केस में तो आपको लेना ही पड़ेगा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन 24 के अंदर। बट इन केस ऑफ सर्विसेज आपको सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन नंबर 2 को एग्जेम्पशन प्रोवाइड करता है, जो यहां पे मेंशन है। इफ यू फॉल अंडर दिस एग्जेम्पशन लिमिट यू आर नॉट लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन, बट अगर आप ये लिमिट्स को क्रॉस करते हो तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है। क्लियर है? वेरी लॉजिकल, अंडरस्टैंडिंग, क्लियर? नाउ ये जब मैं गुड्स की बात करता हूं, सप्लाई की बात करता हूं तो एग्जेम्पशन क्यों दिया, गुड्स की बात करता हूं तो एग्जेम्पशन क्यों दिया है? बेसिकली गुड्स के अंदर हमको ये आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, प्लेस ऑफ कंजम्पशन क्या है। बट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इट इज अ चैलेंजिंग जॉब, so for that particular purpose the government has given certain kind of an exemption, right? This being a crash course, we are not going much in detail in that, we will be covering that when we will be doing the place of supply ka concept. Clear everybody? Now similarly casual taxable person, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आर दोज पर्सन्स हु आर बेसिकली पर्सन हु ओकेशनली अंडरटेक्स ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, राइट है। अगर मैं कहीं और जाके ओकेशनली कुछ काम करता हूं, मैं बॉम्बे का व्यापारी हूं, आई गो टू गुजरात एंड स्टार्ट सेलिंग सर्टेन गुड्स इन द एंड आई डू नॉट हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन गुजरात, मैं सुबह जाता हूं, रात को आ जाता हूं, माल बेच के आ जाता हूं, करेक्ट। सो इन दैट सिचुएशन आई बिकम अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। और द स्टेट कौन सा है? कंजम्पशन स्टेट कौन सा है? गुजरात में माल बेच के आ रहा हूं, तो गुजरात गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलना चाहिए। तो गुजरात गवर्नमेंट क्या बोलता है? बॉस आपका भले एक प्लेस ऑफ बिजनेस फिक्स नहीं है, बट बिकॉज ऑफ यहां पे ओकेशनली आके आप माल बेच रहे हो, सो यू टेक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन और आप एडवांस में पेमेंट कर दो टैक्स का, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेक्टेड सेल यू हैव, एंड देन यू कम इन टू द बिजनेस ओवर हियर, करेक्ट है। इसके लिए एग्जेम्पशन क्या है हमको पता है 23(2) के अंदर, हैंडीक्राफ्ट्स और क्राफ्ट्समैन गुड्स। क्लियर एवरीबॉडी? करेक्ट है। जो हमने यहां पे देखा था हैंडीक्राफ्ट और क्राफ्ट्समैन गुड्स के लिए, और लिमिट क्या था? 20 लाख और 10 लाख का। क्लियर है? वेरी लॉजिकल, सेम एग्जेम्पशन है यहां पे भी 23(2) के हिसाब से, करेक्ट। नाउ थर्ड सिचुएशन कौन सा है? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेने का। तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में हमने देखा एक तो जनरल ट्रेडर हो गए और एक हो गया कौन? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। नाउ थर्ड सिचुएशन व्हाट वी आर सेइंग इज पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर, पर्सन हु रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे करेंगे? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर करेंगे। तो जिस बंदे को सप्लाई मिली है और ही इज लायबल टू मेक द पेमेंट, he is liable to make the payment under reverse charge basis,
दैट मीन्स मैं अगर कोई ऐसी सर्विस ले रहा हूँ, ऐसे गुड्स ले रहा हूँ जिसपे एज अ रेसिपिएंट आई एम लायबल टू मेक द पेमेंट ऑफ रिवर्स चार्ज बेसिस, देन आई एम बिकमिंग कंपल्सरीली लायबल टू टेक द रजिस्ट्रेशन, एंड that in that scenario I will have to take the compulsory registration, right? So notification number 5/2017 in exercise of the power conferred in section number 23(2) कौन सा था? जिस केस में मेरे को रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है, क्लियर है? पर्सन नॉट लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन. सो एज पर नोटिफिकेशन नंबर 5/2017 in exercise of the power conferred in 23(2) of the CGST Act, the central government hereby specifies the person who are only engaged in making supplies of taxable goods or services or both, only engaged in making supplies of what? Taxable goods or services or both, the total tax on which is liable to be paid on reverse charge basis. तो मैं कोई बिजनेस करता हूं जिसपे मैं अगर सर्विस प्रोवाइड करता हूं या मैं गुड्स प्रोवाइड करता हूं जिसपे कलेक्शन और पेमेंट का चार्जेस, पेमेंट कौन करने वाला है? रेसिपिएंट करने वाला है, एंड आई एम डूइंग नो अदर बिजनेस अदर देन दिस. दैट मीन्स एज अ बिजनेसमैन आई एम डूइंग व्हाट? वेयर यहाँ पे द सेंट्रल गवर्नमेंट हियरबाय स्पेसिफाई द पर्सन हु आर ओनली एंगेज इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स, person who are only engaged in making supplies of taxable goods or services or both, the total tax, total जितना मेरा turnover है उस पर total tax on which the liability to be paid is only on reverse charge basis. तो मैं वही धंधा करता हूं जिसपे reverse charge basis पे supplier और recipient को tax pay करना है. I am not doing any other business by the recipient of such goods or services or both under section 9(3) of the said act as the category of person exempted from the then this particular businessman who is doing this service is exempted from taking the registration. क्लियर है? वेरी लॉजिकल, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है. अगर मेरे को पेमेंट ही नहीं करना है, पेमेंट किसको करना है? रेसिपिएंट को करना है, तो मैं क्यों लू रजिस्ट्रेशन? करेक्ट? आई डू नॉट वांट टू क्रिएट द एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, राइट? इलस्ट्रेशन, इफ एबीसी लिमिटेड इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, एंड इट पेज एन अमाउंट टू इट्स डायरेक्टर, डायरेक्टर को कुछ अमाउंट का पेमेंट करता है, उसने कुछ सर्विस दी है. नाउ डायरेक्टर वो क्या हो गया? एंड ऑन विच आरसीएम इज एप्लीकेबल, जो भी डायरेक्टर को फीस जाएगी उस पर आरसीएम एप्लीकेबल है. सो सिंस इट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जो एबीसी लिमिटेड है ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, दे मे नॉट टेक अ न्यू रजिस्ट्रेशन. करेक्ट है? और अगर कोई ऐसा बंदा है जो रजिस्टर्ड नहीं है, राइट है, इफ यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन and if you are taking certain goods or services on which you are supposed to make the payment on RCM basis, तो भले ही आपका टर्नओवर 1 रुपए का क्यों ना हो, बट आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेके उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा. अंडरस्टैंड द डिफरेंस. I'll show you the difference what we are trying to explain you. If suppose you are a recipient, आप रेसिपिएंट कैसे हो सकते हो? आप दो कैटेगरी में रेसिपिएंट हो सकते हो, राइट? वन इज रजिस्टर्ड एंड वन इज अनरजिस्टर्ड. Now, if you are consuming something, आपके पास कोई गुड्स आ रहे हैं, he is a seller. Now, this person, he is selling certain goods and services जिसपे RCM applicable है. Now, if जिसपे RCM applicable है, तो as a recipient, अगर आप रजिस्टर्ड हो, then you need not take another registration number. आप यही रजिस्ट्रेशन नंबर पे आप RCM पे गुड्स पे आप RCM पे टैक्स पे कर सकते हो. बट अगर आप अनरजिस्टर्ड हो, आप अनरजिस्टर्ड क्यों हो गया? तो आपका थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं हुआ होगा फॉर एनी रीजन, इफ यू आर फॉलोइंग अंडर द कैटेगरी ऑफ बीइंग नॉट लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन. करेक्ट है? एंड इफ यू आर रिसीविंग सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन विच you are liable to make the payment under reverse charge basis, then आपका भले टर्नओवर का लिमिट, टर्नओवर 1 रुपए का भी क्यों ना हो, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर लेना ही पड़ेगा. क्लियर है? इज इट क्लियर? सो पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यहां पे कोई भी लिमिट नहीं बोला है कि कितना आपको पेमेंट करना है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे. हियर व्हाट इट स्टेट्स इज दैट जो पर्सन को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे पेमेंट करना है टैक्स का, उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. अगर उसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है, देन यू नीड नॉट टेक न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर. बट अगर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, देन यू विल हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन नंबर. क्लियर? आपको समझ में आ रहा है? क्लियर? सिमिलरली, फोर्थ सिचुएशन इज पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(5). 9(5) क्या बोलता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर, राइट? जब हम सेक्शन नंबर 9(5) पढ़ रहे हैं तो हम देख रहे थे कि सेक्शन नंबर 9 क्या बोलता है? चार्जेबिलिटी है. सो सेक्शन नंबर 9(5) के अंदर क्या है? पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(5). दैट मीन्स एग्रीगेटर्स की बात कर रहे हैं, लाइक ओला, उबर, ओयो, अर्बन क्लैप. करेक्ट? सो इन दिस सिचुएशन लेट अस गो एंड फर्स्ट सी सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 क्या बोलता है. लेट अस क्विकली गो एंड सी सेक्शन नंबर 9(5) क्या बोलता है. सॉरी, 1 सेकेंड.
ओके, सेक्शन नंबर 9(5) क्या बोलता है? यहाँ चार्जिंग सेक्शन की बात हो रही है, तो चार्जिंग सेक्शन में हमने सेक्शन नंबर 9(1) देखा था, करेक्ट है. देन वी सॉ सेक्शन नंबर 9(2) ऑल्सो. 9(1), 9(2) we read together, correct? That means charging किस पे लगता है, right? Then now we are seeing is section number 9 subsection 5, notified categories of services. किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? खाली सर्विसेज की बात कर रहे हैं. On which the tax is payable by whom? E-commerce operator. If such services are provided through e-commerce operator. अगर e-commerce operator कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो नोटिफाइड है, then e-commerce operator will have to make the payment of taxes. Clear everybody? ये बोलता है सेक्शन नंबर 9(5). That means ये चार्ज लगा रहा है e-commerce operator के ऊपर अगर आप ये नोटिफाइड सर्विसेज करते हो तो. So what are those notified services? Let us go and see what the notified services are. So notified service categories of services. There are 3 categories of notified services. What are those 3 categories of notified services? Let us see that. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स. दैट मीन्स अगर मैं कोई एक कंपनी हूं जो प्रोवाइड करता है सर्विस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का, लाइक ओला एंड उबर. सो ओला के अंदर क्या होता है? ओला डज नॉट ओन द टैक्सी और नाइदर ओला ओन्स द पैसेंजर. ओला इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे टैक्सी और टैक्सी ऑपरेटर एज वेल एज द पर्सन गोइंग टू यूज दिस टैक्सी एग्रीगेट. करेक्ट है? इट्स एन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म. ओला का खुद का कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म. सो इट इज बिकमिंग एन ई कॉमर्स ऑपरेटर. सो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो. नाउ बिकॉज ये टैक्सी ऑपरेटर जो है, ये टैक्सी ऑपरेटर इंडिविजुअल्स हैं. बिकॉज दीज आर इंडिविजुअल्स, दे विल नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट? अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट? रजिस्टर्ड पर्सन. और ना ही वो रजिस्ट्रेशन लेने वाले इंडिविजुअल लेवल पे. करेक्ट है? तो और ना ही जो बंदा है यहाँ पे जो रिसीव कर रहा है सर्विस, वो भी इंडिविजुअल लेवल पे कोई टैक्स तो पे करने वाला नहीं है आरसीएम के अंदर. सो दैट इज व्हाई गवर्नमेंट केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं इतने सारे कैटेगरीज ऑफ सर्विस के अंदर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, उसको कौन करेगा ट्रांजैक्शन को मॉनिटर? सो फॉर मॉनिटरिंग दैट ट्रांजैक्शन दे केम एंड होल्ड द नेक ऑफ दिस पर्टिकुलर नोटिफाइड सर्विस प्रोवाइडर्स, ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो बोलते हैं कि अगर आप ये ई कॉमर्स ऑपरेटिंग का काम करते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करने का. क्लियर है? सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स लाइक ओला, ऑलवेज ई कॉमर्स विल बी लायबल. व्हाई ई कॉमर्स विल बी लायबल? ओला क्या करता है यहाँ पे? ओला इज बेसिकली जस्ट अ प्लेटफॉर्म, मोबाइल प्लेटफॉर्म, जहां पे आपका टैक्सी ड्राइवर्स प्लस द यूजर्स दे मीट टुगेदर. करेक्ट? नाउ दीज टैक्सी ड्राइवर्स आर इंडिविजुअल्स, तो ये तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेंगे नहीं. सिमिलरली जो यूजर्स हैं ये भी इंडिविजुअल हैं. दीज आर नॉट गोइंग टू मेक द पेमेंट इन आरसीएम मैकेनिज्म, वो पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे. राइट? सो ये ट्रांजैक्शन इतने सारे हो रहे हैं तो इसका वॉल्यूम कितना बड़ा है. तो दैट इज व्हाई गवर्नमेंट केम विद एन ऑप्शन कि 9(5) को इंट्रोड्यूस किया और बोला कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसको ये ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करना है और इसके ऊपर उनको जीएसटी का कलेक्शन करके पेमेंट करना. राइट? सो व्हाट डू मीन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स? एक तरह की सर्विस हो गई. दूसरी सर्विस कौन सी हो गई? अकोमोडेशन सर्विसेज, दैट इज एयरबीएनबी. एयरबीएनबी टाइप हो गए या ओयो रूम्स हो गए. अगर कोई प्लेटफॉर्म है जो, अगर मेरे पास कोई फ्लैट खाली पड़ा है, इफ आई वांट टू रेंट दिस पर्टिकुलर फ्लैट एंड एन अकोमोडेशन, राइट? सो मैं क्या जाऊंगा, मैं लिस्टिंग करूंगा उसको ओयो रूम्स के अंदर या मैं लिस्टिंग करूंगा एयरबीएनबी के अंदर. नाउ इफ आई लिस्ट दिस इन द एयरबीएनबी, देन एयरबीएनबी के कस्टमर आएंगे, दे विल सी माय फोटोग्राफ्स ऑफ माय फ्लैट एंड इफ दे लाइक इट दे विल बुक द फ्लैट. करेक्ट है? सो इन दैट सिनेरियो आई एम एन इंडिविजुअल, आई डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन, राइट? एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू यूज दिस सर्विस, ही इज आल्सो इंडिविजुअल, he will not take the registration or pay the payment on the RCM basis. So in case if I'm a flat owner small and if I'm providing these accommodation services through Airbnb, then in that scenario Airbnb will have to collect the taxes and make the payment. But if I'm not a flat owner, but if I'm a hotel who is already registered, then in that scenario e-commerce operator will not be liable. The hotel itself will collect the taxes and make the payment of taxes. Clear? Understand this difference? So in case of transportation of passenger, always and always e-commerce operator will be liable. But in case of accommodation services, अगर जो सर्विस जो accommodation provide कर रहा है, if he is a registered person, then e-commerce operator will not be liable. But if is not in मैं छोटा फ्लैट लेके बैठा हूं जिसपे मेरे को कोई लाइबिलिटी नहीं है जीएसटी का, बिकॉज मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं हुआ है, then in that scenario the e-commerce operator will be liable. But if I'm a whole hotel which is listed onto the Airbnb या फिर ओयो रूम्स के अंदर, then because I'm a registered person मैं खुद लाइबल हूं उस पर टैक्स पेमेंट करने का. क्लियर एवरीबॉडी? करेक्ट?
सिमिलरली हाउस कीपिंग सर्विसेज लाइक अर्बन क्लैप, अगर अर्बन क्लैप से आपको सर्विसेज को यूज करते हो, राइट, यू कॉल फॉर प्लम्बर, यू कॉल फॉर एनी काइंड ऑफ ब्यूटिशियन, अगर वो ब्यूटिशियन और प्लम्बर रजिस्टर्ड हैं देन दे विल मेक द पेमेंट ऑफ टैक्सेस. अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है देन द सर्विस प्रोवाइडर लाइक द अर्बन क्लैप, हाउसकीपिंग सर्विस प्रोवाइडर विल हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ द टैक्सेस बाय कलेक्टिंग इट. करेक्ट है. सो इसमें कैसे होता है, बिकॉज द पेमेंट इज गोइंग टू दिस प्लेटफॉर्म लाइक ओयो और ओला या फिर अर्बन क्लैप, सो दीज पीपल collect the taxes, deduct it from the amount to be reimbursed to the service provider, and then they make the payment to the taxes. Correct everybody? Now let us see in detail कि ये transportation of passengers में किसकी बात कर रहे हैं, right? All kind of transportation of passengers concerned or not covered or not, correct? So in that scenario let us see radio taxis, which is two-way communication with central office through GPS और GPRS, राइट है. जो रेडियो टैक्सीज की बात करते हैं, ओला उबर की बात करते हैं, वो इसके अंदर कवर्ड है, राइट है. और मोटर कैब, दैट मीन्स मोटर व्हीकल विच कैरी ग्रेटर देन 6% बट लेस देन 12%, राइट है, एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर ऑन हायर और रिवार्ड, राइट. तो उनको भी इसके अंदर कवर कर लिया गया. अगर ऐसी कोई कंपनी है विच इज गिविंग सर्विसेज ऑफ मोटर कैब प्रोवाइडिंग which is basically carrying more than 6% and less than 12%, then this is also, और वो जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा दैट प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ये आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर का लाइबिलिटी आएगा. करेक्ट है. सिमिलरली इफ अ मैक्सी कैब सर्विस दैट इज मोटर व्हीकल टू कैरी लेस देन 6 पैसेंजर एक्सक्लूडिंग ड्राइवर ऑन हायर और रिवॉर्ड, सो बेसिकली 6 के नीचे वालों को भी कवर कर लिया है, 6 के ऊपर वाले अप टू 12 तक को भी कवर कर लिया है, एज वेल एज मोटरसाइकिल वाली जो सर्विसेज हैं. आजकल बहुत सारे रैपिडो टाइप एप्लीकेशंस आ गए हैं जहां पे शेयरिंग ऑफ मोटर बाइक होती है. सो दोज आर ऑल्सो कवर्ड. इट इज नॉट कवरिंग योर एयरवेज, इट इज नॉट कवरिंग योर वाटरवेज, इट इज नॉट कवरिंग योर रेलवेज, इट इज ओनली टॉकिंग अबाउट योर रोडवेज. उसके अंदर भी जो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो प्रोवाइड कर रहे हैं लाइक रेडियो टैक्सीज, लाइक मोटर कैब, मैक्सी कैब और हायर सर्विस और मोटरसाइकिल्स. करेक्ट है. सो अगर कोई बंदा इसकी सर्विस प्रोवाइड करता है, राइट है, तो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर को लाइबिलिटी है रजिस्ट्रेशन देने का. हम पढ़ रहे हैं रजिस्ट्रेशन, और हमने रजिस्ट्रेशन के अंदर ये देखा कि रजिस्ट्रेशन के अंदर हमने क्या देखा, सेक्शन 9(5) के अंदर वी हैव सीन कि जो पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(5), टैक्स अंडर सेक्शन 9(5) कौन पे करेगा, रिवर्स चार्ज, सॉरी, ई कॉमर्स ऑपरेटर का पेमेंट करने वाला है. सो वी आर सीइंग व्हाट, ई कॉमर्स ऑपरेटर के अंदर कौन पर्सन है जो चार्ज करने वाला है या पे करने वाला है. करेक्ट है. Similarly, when talking about the accommodation services, Airbnb, if the supplier is unregistered e-commerce operator, if the supplier is unregistered e-commerce operator, that means मैं क्या हूँ, होटल हूँ, इन्स हूँ, गेस्ट हाउस हूँ, क्लब्स हूँ, कैंप साइट हूँ, अदर कमर्शियल प्लेसेस हूँ, meant for residential or lodging purpose, except where the person supplying such service through e-commerce operator is himself liable to register under section 22(1). 22(1) क्या था, जब मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होता है, अगर मैं खुद रजिस्टर्ड हूं then I will not take the register, then the e-commerce operator will not be liable for this particular collection of taxes and payment of taxes. मैं खुद ही क्या होऊंगा, कलेक्ट करने के लिए और लायबल हो जाऊंगा, पेमेंट करने के लिए लायबल होगा. क्लियर है. सिमिलरली हाउस कीपिंग सर्विसेज, अर्बन क्लैप की जब हम बात करते हैं, such as plumbing, carpentering, etc., except where the person supplying such services through e-commerce operator is liable to for registration under section 22(1). अगर 22(1) के अंदर मैं लायबल हूं तो मैं खुद पेमेंट कलेक्ट करूंगा, खुद टैक्स पेमेंट करूंगा. और अगर मैं 22(1) के अंदर थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर नहीं फंसता हूं, then it is the responsibility of the e-commerce operator like Urban Clap. They will have to collect the payment of taxes and reimburse it to the government. Clear everybody? Now, अब ये ई कॉमर्स ऑपरेटर की जब बात करते हैं, ये कहां पे टैक्सेबल होगा, राइट. ई कॉमर्स का प्रेजेंस है क्या. अब ओला उबर जब आया था, दे डिडंट हैड एनी ऑफिसेज, राइट. सो ई कॉमर्स ऑपरेटर डज इट हैज अ प्रेजेंस इन द टैक्सेबल टेरिटरी और नॉट. सो उसके लिए भी हमको कुछ पढ़ना पड़ेगा. व्हाट डू यू मीन बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्सेबल टेरिटरी. सो ई कॉमर्स हैज द प्रेजेंस इन टैक्सेबल टेरिटरी. सो येस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, और नो रिप्रेजेंटेटिव का सिचुएशन भी हो सकता है. इफ दे हैव अ ऑफिस टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर प्रेजेंस है उसका, देन दैट ई कॉमर्स कंपनी विल बिकम लायबल. करेक्ट है. अगर मेरा कोई प्रेजेंस नहीं है, दैट मीन्स if I do not have any office in, if suppose Ola does not have any office in Bombay or in India, then they will have any representative in India. So any representative in the taxable territory, he will become liable for collection and payment of taxes. Correct. Now, अगर Ola Uber एक ऐप है which can run automatically, उसने कोई representative को अपॉइंट ही नहीं किया, ये ऐसे वायरल हो गया, then he will not have any representative. So in that scenario,
the government says that you will have to appoint a representative in the taxable territory for the tax purpose. करेक्ट है, वेरी सिंपल. तो ये समझ में आ गया आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर का 9.5 क्या बोलता है. तो चार्जिंग सेक्शन 9.5 क्या बोलता है, नोटिफाइड कैटेगरीज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, नोटिफाइड कैटेगरीज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनको टैक्स का पेमेंट करना है और कलेक्ट भी करना है. करेक्ट है. इफ आई एम गिविंग दिस नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज, 3 नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज, 1 इज ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड इज अकोमोडेशन एंड थर्ड इज हाउसकीपिंग. राइट है. अगर मैं ये 3 सर्विस प्रोवाइड करता हूं, देन बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग दैट ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू टेक द रजिस्ट्रेशन. करेक्ट. और ट्रांसपोर्टेशन के केस में तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को हर बार लेना है, ऑलवेज लेना है. पर इन केस ऑफ अकोमोडेशन एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज, अगर जो सर्विस प्रोवाइडर है ही हिमसेल्फ इज लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22(1), दैट मींस अगर मेरा फ्लैट है तो मैं रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल नहीं हूं 22(1) के अंदर, तो एयरबीएनबी मेरा जीएसटी पटाएगा. अगर मैं बड़ा होटल हूं और मैंने एयरबीएनबी पे लिस्ट किया है तो मेरा जो लिमिट है 22(1) के अंदर ऑलरेडी क्रॉस होता है, तो मेरे को क्या होगा, मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा 22(1) के अंदर. सो इन केस इफ आई एम रजिस्टर्ड 22(1), that means मैं registered liable हूं, then the Airbnb is not liable to take the registration. Clear everybody? Not liable to make the payment of taxes. Correct? Clear है? Similarly for the housekeeping services also. Now let us go back to the concept of our registration again. So, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं. कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के अंदर हमने फर्स्ट चीज देखा इंटरस्टेट सप्लाई वाला, हमने समझ लिया कि अगर कोई इंटरस्टेट सप्लाई हो रहा है तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर कुछ सिचुएशन ऐसे हैं जो 23(2) ने एग्जेम्प्ट कर रखे हैं. उसके अलावा अगर मैं कोई भी काम करता हूं, गुड्स का काम करता हूं, एक्सेप्ट हैंडीक्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्समैन गुड्स का, देन आई एम सपोज टू टेक द रजिस्ट्रेशन मैंडेटरीली, कंपल्सरीली. देन वी टॉक अबाउट कंपल्सरी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. देन वी सॉ पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां हमने डायरेक्टर का एग्जांपल देखा था. Then we saw person who are required to pay tax under section 9(5), that is e-commerce operator, aggregators like Ola, Uber, Oyo, Urban. right है. इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन आया है, क्लैरिफिकेशन ऑन रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड ऑन होम स्टेज. राइट है. गोवा में बहुत सारे होम स्टेज होते हैं. राइट है. अगर मेरा घर है तो मेरे को अगर 4 BHK का बंगलो है, देन व्हाट आई डू इज दैट आई यूज 1 BHK एंड आई गिव 3 BHK ऑन रेंट यूजिंग एयरबीएनबी और एनी काइंड ऑफ ओयो सर्विसेज. राइट. प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर. तो किसका लायबिलिटी आएगा, इसका सर्कुलर नंबर 27/1 2018 ने क्या बोला. लेट अस सी दैट सर्कुलर का अंडरस्टैंडिंग, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट, but just for the sake of reading we'll quickly read this. So issue is whether the homestay providing accommodation थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, मैंने मेरे घर को, मेरे गोवा के बंगलो को एयरबीएनबी पे लिस्ट कर दिया, बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टेकिंग रजिस्ट्रेशन. राइट. सो बेसिकली मेरा लिमिट क्या है, मेरी इनकम से 5 लाख रुपए है और मैंने जो है मेरे पास जो फ्लैट पड़ा है उससे मेरे को इनकम कमानी थी, सो मैंने उसको एयरबीएनबी पे लिस्ट कर दिया. नाउ इफ whether I am supposed to take the registration or not is the question. So notification number 17/2017 has been issued making e-commerce operators liable for payment of GST in case of accommodation services provided in hotels, in guest houses or other commercial places meant for residential or lodging purposes provided by a person having turnover below 20 lakhs or 10 lakhs in the special category states per annum and thus not required to take registration under section 22(1). So मेरा जो होम स्टे, मैं खुद होम स्टे जो चलाता हूँ, मेरा जो खुद का होम स्टे है, बिकॉज मेरा टर्नओवर 5 लाख से नीचे है, मैं 22(1) के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए मैं लायबल नहीं हूँ. सच पर्सन्स even though they provide services through e-commerce operator are not required to take registration in the view of section 24(9) of the CGST Act. Correct everybody? So ये सिंपल है, ये 24(9) के साथ हम लिंक करेंगे जब 24(9) भी हम पढ़ेंगे. करेक्ट है. सो बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एज अ पर्सन इफ आई एम गिविंग माई होम स्टे ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो इस केस के अंदर क्या हो गया, बिकॉज आई एम गिविंग ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सो इन दैट सिचुएशन व्हाट आई एम डूइंग हियर इज दैट मैं इनकम भले थ्रेशोल्ड लिमिट के नीचे है तो मेरे को रजिस्ट्रेशन देने का जरूरत नहीं है. क्लियर है. दैट इज द क्लैरिफिकेशन व्हिच हैज बीन गिवन. नाउ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जैसे हमने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन पढ़ा था, सिमिलरली वी हैव समबडी कॉल्ड एज नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन. राइट. मींस जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके बिजनेस करता है, सिमिलरली अगर कोई फॉरेनर आके इंडिया के अंदर बिजनेस करता है, देन इट इज कॉल्ड एज नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन. करेक्ट है. इफ अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कम्स टू इंडिया फ्रॉम यूएसए, जापान एंड इफ इट डज बिजनेस and he is making a taxable supply, then he is compulsorily liable to take the registration. Right है. Clear है. Very logical. अगर मैं स्टेट टू स्टेट ही नहीं छोड़ रहा हूं तो मैं दूसरी कंट्री का क्यों छोड़ूंगा. नाउ TDS डिडक्टर अंडर सेक्शन 51, अंडर सेक्शन 51 के अंदर क्या हुआ,
कि जो बहुत बार ऐसा हो गया था कि दैट इफ आई एम सप्लाइंग सम गुड्स टू द गवर्नमेंट, नाउ इफ आई एम सप्लाइंग सम गुड्स टू द गवर्नमेंट, तो इन दैट सिनेरियो देयर वाज सर्टेन सिचुएशन जहां पे मैं गुड्स को, ये जो भी गुड्स प्रोवाइड कर रहा हूं, ये मैं डिस्क्लोज ही नहीं करता था मेरे सप्लाई के अंदर, करेक्ट है. सो टू कर्ब दैट सिचुएशन, टू आइडेंटिफाई कि प्रॉपर detail of supplies have been provided in the returns or not, the government came up with the concept of TDS deductor. That means अगर मैंने गवर्नमेंट को कोई भी सप्लाई किया है more than 2 lakh rupees, then the government will deduct and TDS from my amount and give it back to me, correct है. So जब TDS deduct करेगा, it is in the form of TDS under GST, not in the form of income tax act. तो जो TDS मेरा GST के पॉइंट ऑफ व्यू से डिडक्ट हुआ है, उसका मेरे को बेनिफिट मिलने वाला है. तो उसका जब मुझे बेनिफिट मिलने वाला है, तो मेरे को एज ए सप्लायर भी मेरे को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा. और ये बंदा बोलेगा कि दिस पर्सन से आई हैव टेकन द रजिस्टर, आई हैव टेकन द सप्लाई ऑफ गुड्स, सो दिस पर्टिकुलर सप्लाई विल बी शोन अंडर द सप्लाई का टर्नओवर, करेक्ट है. दैट मींस गवर्नमेंट ने कितना कंज्यूम किया है फ्रॉम दीज पर्संस विल आल्सो बी कवर्ड. फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस they came out with this concept of this particular concept of what अदर TDS. तो गवर्नमेंट जब पेमेंट करेगा तो TDS डिडक्ट करेगा, और TDS डिडक्ट करने के बाद वो पेमेंट करेगा, एंड दिस TDS डिडक्टेड विल बी रिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ द पर्सन इज सप्लाइंग द गुड्स, एंड अकॉर्डिंगली उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. तो गवर्नमेंट को भी TDS रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर सेक्शन 51, करेक्ट है. सो अलग से उसको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा. क्लियर है? इज इट क्लियर? बिकॉज क्यों? बिकॉज हमने जब देखा था गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज, तो देयर आर सर्टेन एग्जेम्पशन व्हिच आर अवेलेबल, राइट. सो अब जब ये गुड्स को एग्जेम्प्टेड है, तो वो जीएसटी लेने वाला ही नहीं है, तो मैं इसको सप्लाई करूंगा तो जीएसटी का क्या करेंगे उसका, करेक्ट है. सो फॉर दैट पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन गवर्नमेंट केम अप विद दिस क्लॉज कि आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर को एज अ गवर्नमेंट आई एम गोइंग टू डिडक्ट द TDS का amount, so and that will be reflected in your GST electronic credit ledger, correct है. So only for the purpose of this deduction of TDS they will have to take the GST number. Clear? Is it clear? So what if they are providing something which is not taxable, but they are consuming something, they are purchasing something जिसपे उनको थर्ड पार्टी से कुछ परचेजेस करने हैं. So whatever payment they have to make, they will have to deduct the TDS and make the payment. Correct everybody? Is it clear? So they are taking specific registration only and only for the purpose of TDS deduction, correct? So ये है basically point number 6, correct है. TDS deducted under section 51. Then person making taxable supply of goods and services on behalf of other taxable person or otherwise. That means मैं किसी और के बिहाफ पे अगर मैं सप्लाईज कर रहा हूं, या फिर मैं खुद के बिहाफ पे टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं, right? So person making taxable supply of goods and services or both on behalf of taxable persons or otherwise. Then agent supplying in behalf of principal. ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया? अगर दूसरे पर्सन के बिहाफ पे मैं काम कर रहा हूं तो मतलब क्या होगा? एजेंट की बात कर रहा हूं. एजेंट सप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, दैट इज द टैक्सेबल पर्सन. प्रिंसिपल क्या है? टैक्सेबल पर्सन. इफ द प्रिंसिपल इज अ टैक्सेबल पर्सन, एजेंट इज रिक्वायर्ड टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, राइट. लेट अस गो एंड अंडरस्टैंड दिस. ये क्यों बोला गया? वेरी सिंपल लॉजिकल. ये हमने डिस्कस भी किया है. मैं प्रिंसिपल हूं, ये मेरा एजेंट है. ये एजेंट जो है किसी बायर को गुड्स बेचता है. नाउ ही इज बेसिकली इशूइंग हिज इनवॉइस. नाउ जब मैं इसको गुड्स बेचता हूं तो सप्लाई के डेफिनेशन के अंदर आ जाता है. तो जब ये सप्लाई के डेफिनेशन के अंदर आ जाता है और मैं अगर रजिस्टर्ड पर्सन हूं तो मैं सप्लाई के अंदर जीएसटी लगाऊंगा, और जैसे मैं जीएसटी लगाऊंगा तो इसका आईटीसी इसको लेना है. तो इफ यू हैव टू टेक द आईटीसी यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड, करेक्ट है. वही इसके अंदर बोला गया है. पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन. तो ये जो बंदा बिकॉज ये टैक्सेबल पर्सन है और ये बंदा अगर एजेंसी का काम लेता है, सो बिकॉज यू हैव टू कंज्यूम दिस आईटीसी यू विल आल्सो हैव टू टेक द जीएसटी रजिस्ट्रेशन. वेरी लॉजिकल, करेक्ट है. सो एजेंट सप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, and if the principal is a taxable person then the agent is required to take compulsory registration, correct है. अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा तो आईटीसी का क्या होगा? ये आईटीसी इसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा एंड द गुड्स विल बिकम एक्सपेंसिव. सो कंपल्सरीली बोला गया है कि एजेंट रिलेशन को भी ट्रैक करने के लिए इसको भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. सो आप समझ रहे हो कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेने का मतलब क्या है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट वांट्स टू कीप अ ट्रैक ऑन ईच एंड एवरी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन. बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन द गवर्नमेंट हैज कम अप विद द लिस्ट which states कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन आपको कब कब लेना है, करेक्ट है. दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. क्लियर? सो पर्सन सप्लाइंग, राइट. सो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? सपोज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? दिस इज रिलायंस इंडस्ट्री. इनका हेड ऑफिस से मुंबई में है.
ना इनके बहुत सारे ऑफिस हैं, जैसे जामनगर से जामनगर इन गुजरात, और से इट इज इन राजस्थान, इट इज इन वेस्ट बंगाल. सो दे अपॉइंट अ एडवर्टाइजमेंट एजेंसी. उनको क्या बोलते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट, पूरा कंपनी का एडवर्टाइजमेंट का आप कॉन्ट्रैक्ट ले लो और सब स्टेट के बिहाफ पे आप एडवर्टाइजमेंट करो. सो बिकॉज ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट एजेंसी द सेल इज इंक्रीजिंग इन दीज स्टेट्स, करेक्ट. बट इसका कॉन्ट्रैक्ट किससे, पेरेंट कंपनी से, राइट. सो दे विल रेज एन इनवॉइस टू दिस पर्टिकुलर पर्सन ऑफ से 1 CR रुपीज ऑन अ मंथ, और इसके ऊपर उन्होंने समझो जीएसटी चार्ज किया से 18 लाख रुपीज. तो ये जो 18 लाख रुपीज का जीएसटी है, ये किसको, ये रिलायंस के बुक्स में खड़ा हो जाएगा. नाउ दिस 18 लाख रुपीज का जीएसटी, दिस रिलायंस कैन ट्रांसफर इट टू दिस पर्टिकुलर स्टेट्स, करेक्ट है. व्हाई दे नीड टू ट्रांसफर, बिकॉज स्टेट में सेल्स हो रहा है. तो जब स्टेट में सेल हो रहा है तो मेरे को टैक्स लायबिलिटी है पेमेंट करने का. अब ये मेरे पास ऑलरेडी यहाँ रिलायंस के हेड ऑफिस के अंदर मेरे पास आईटीसी बैठा हुआ है, और यहाँ पे मैं टैक्स का पेमेंट करूंगा, which is not practically possible. Look at the amount of working capital that will be blocked. So for that particular purpose, government came out of situation, अगर आपको ऐसा कोई भी ट्रांसफर करना है जीएसटी को, then you have to get registered compulsorily as input service distributor. Understand? Very logical. कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, करेक्ट है. अगर मेरे पास हेड ऑफिस का कुछ क्रेडिट पड़ा है और सामने अगर ब्रांचेस को अगर पेमेंट करना है, और वो जो मेरे पास हेड ऑफिस के अंदर जो आईटीसी आया है, that has been used commonly by all the branches, then I can transfer this ITC if I've taken the input service distributor का registration. Clear everybody? Now that is what is there as far as this compulsory registration of input service distributors are concerned, correct. Then we will see this 9th point and 10th point we will do once we will be doing with our section number 9 thus the chargeability section, उसके साथ हम इसको कवर करेंगे, right. Then we have overseas OIDER service provider. Now what do you mean by overseas OIDER service provider? Who are these OIDER service provider? Online information data service provider. Suppose Netflix है, Netflix ने अगर बाहर से कोई सर्विस प्रोवाइड किया, right. Netflix is providing certain content on electronic media and the supplier is outside, correct है. बॉम्बे में कोई इसका, इंडिया में कोई रजिस्ट्रेशन ऑफिस नहीं है उसका, सपोज, राइट. ओवरसीज OIDER सर्विस प्रोवाइडर सप्लाइंग टू अ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, राइट है. अगर उसने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है, तो डेफिनेटली रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा, इंपोर्टर सर्विसेज पे आप जीएसटी पे कर देगा. बट इफ इज गिविंग सप्लाइंग दिस सर्विसेज overseas services to a person other than registered person, that means to unregistered person, and from outside the place of India, then he has to compulsorily take registration in India and make the payment of GST. Clear everybody? That means अगर Netflix है, ये Netflix अगर ये खाली corporates को देता है for specific movies, then it is doing a B2B business to a registered person. Then in that scenario, these corporates will give import of service के अंदर GST पे कर देंगे. But if these Netflix is coming to the person who are unregistered, that means common man, मैं एक unregistered person हूँ, आप एक unregistered person है, you are viewing Netflix, तो आप क्या उस पर जीएसटी पे करोगे, नहीं पे करोगे, राइट. एंड क्या नेटफ्लिक्स पे जीएसटी कैसे पे करेगा, वाई, बिकॉज नेटफ्लिक्स हैज टू पे जीएसटी बिकॉज इट इज गेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम द गवर्नमेंट, रेवेन्यू फ्रॉम द इंडियन कंट्री. सो द गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल दिस एक्टिविटी. सो गवर्नमेंट वांट्स टू से कि बिकॉज पैसा मेरा देश से बाहर जा रहा है, मेरे को उसका जीएसटी चाहिए, राइट. बिकॉज ये कंज्यूम हो रहा है इंडिया के अंदर, राइट. कंज्यूम कहाँ हो रहा है, डेस्टिनेशन कहाँ है, इंडिया के अंदर है. So that is why it states that in case of overseas OIDER services supplier supplying it to unregistered person from a place outside India, you will have to come and take registration in India, and then only you are supposed to provide the services. Clear everybody? Understanding? Clear hai? And the last point is such other persons or class of persons who are basically which will be notified by this particular section, correct hai? That is what is there as far as this compulsory registration are concerned, right. So compulsory registration के अंदर हमने क्या क्या देखा, first we saw compulsory registration के अंदर persons making any interstate taxable supply, person making any interstate taxable supply, उसके अंदर कुछ exemptions दिए 23(2) के अंदर, which is talking about supply of services, and in case of goods only handicrafts and craftsman good. सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर भी सप्लाई ऑफ सर्विस अगर ज्वेलरी रिलेटेड है तो उसको एग्जेम्पशन नहीं दिया गया, करेक्ट. देन वी सॉ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर मेरी स्टेट में आके धंधा करता है, देन ऑल्सो ही हैज टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, उसके लिए कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट काम नहीं करेगा. देन वी सॉ पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. अगर मेरे को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पेमेंट करना है, इफ आई एम ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ पेमेंट कर दूंगा. इफ आई एम नॉट रजिस्टर्ड
दो अगर मैंने 1 रुपए का भी कुछ सप्लाई रिसीव किया जिसपे मेरे को आरसीएम पेमेंट करना है, then I'll have to take the registration number. Clear है? Now, then we saw 9.4 which is talking about the e-commerce operator. Sorry, जो 9.5 के अंदर पर्सन लायबल है ई-कॉमर्स ऑपरेटर, they will have to collect the payment and make the payment of taxes, right है? So in that situation, कौन से situation ऐसे हैं जहां हमको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है? We have seen there are 3 notified services. What are 3 notified services? एक तो हो गया transportation services. In case of transportation services, it is always and always compulsory for the e-commerce operator to take the registration and make the payment of taxes. In case of accommodation services, if the accommodation services जो provide कर रहे हैं, जिसका flat वो list कर रहे हैं, if those persons are not registered in section 22(1), then OYO will have to take the registration. But अगर जिनका वो flat list कर रहे हैं, suppose the listing Lemon Tree as a hotel group, then those people are already registered in section 22(1), then they will collect the payment. Lemon Tree will collect the payment and make the payment of taxes. Then in that situation, the OYO room will not be required compulsory to take the registration. Similarly, urban clap की बात करते हैं जो हाउसकीपिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं. So in case of housekeeping services also same concept works. अगर जिसको जो सर्विस दे रहा है using this urban clap का platform, if he is registered in section 22(1), then he is not, then urban clap is not required to take registration. But if he is giving registration, if the service provider are those people who are not registered in section 22(1), then urban clap will have to take the registration. Clear everybody? Right है? That is what we saw in this also. Then non-resident taxable person, अगर casual taxable person एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाके अगर टैक्स का रजिस्ट्रेशन ले रहा है, then non-resident person जो बाहर से आके इंडिया में टैक्स गुड्स को सप्लाई कर रहा है, then definitely he will also have to take the registration. Clear है? Similarly, tax deductor under section 51, गवर्नमेंट अगर कोई पेमेंट कर रही है किसी को, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, समझने के लिए कि सारे के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड में आ रहे हैं कि नहीं, गवर्नमेंट will have to take the GST registration number just for the sake of DDS deduction. अगर वो ऐसे कुछ गुड सप्लाई प्रोवाइड करते हैं जो अल्टीमेटली टैक्सेबल है ही नहीं, या फिर वो कोई ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं, दैट मींस अगर सपोज एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट का ऑफिस है, अगर उन्होंने कोई सर्विस कंज्यूम किया, राइट है, आई एम सपोज इफ आई एम कार सर्विस प्रोवाइडर, अगर मैंने उनको कोई कार सर्विस प्रोवाइड की, अब वो कोई सर्विस से आगे नहीं दे रहे, दैट इज जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, उन्होंने सिर्फ मेरे को पेमेंट कर दिया, अगर उन्होंने मेरे को पेमेंट कर दिया और वो उनको कोई रिटर्न फाइल ही नहीं करना है, तो देयर इज अ हुल चांसेस दैट आई विल स्किप दैट ट्रांजैक्शन, मैं उस पर जीएसटी पे ही नहीं करूंगा. सो टू कर्ब दो सिचुएशन, गवर्नमेंट केम अप विद द कंडीशन कि मेरे को अगर किसी से 2.5 लाख के ऊपर का पेमेंट करना है, देन वो जीएसटी का जो अमाउंट होगा मैं उस पे एक अमाउंट डिडक्ट करूंगा और उसको मैं अपने रिटर्न में शो करूंगा. सो जो सर्विस प्रोवाइडर है, he will have to get registered if he wants to claim that particular TDS का amount. Correct है? That is what is there as far as TDS deductor. Specifically उनको TDS deduction के लिए ही registration लेना पड़ेगा. Then we saw person making taxable supply of goods and services on behalf of other taxable person. That means मैं principal agent की बात कर रहा हूं. अगर principal registered है, तो जब वो agent को transfer करेगा, GST लगा के transfer करेगा, और जब एजेंट सेल करेगा उसको भी जीएसटी लगा के ही करना पड़ेगा. एंड टू क्लेम द आईटीसी फ्रॉम द प्रिंसिपल, ही इज कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू टेक द जीएसटी सेशन. अंडरस्टैंड इट लॉजिकली, सब लॉजिकल है, इसके अंदर कोई भी इलॉजिकल बात ही नहीं है, राइट. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नाउ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? अगर रिलायंस इंडस्ट्री है एंड ही इज कंज्यूमिंग सर्टेन सर्विसेज व्हिच इज यूज्ड कॉमनली फॉर ऑल हिज ब्रांचेस, तो बिल तो आएगा हेड ऑफिस के अंदर. अगर बिल हेड ऑफिस के अंदर आएगा और उनको सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो स्पेसिफिकली दे विल हैव टू टेक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन अंडर दिस सेक्शन नंबर 24. क्लियर है? क्लियर है? देन 9 और 10 हम लोग बाद में देखेंगे. देन 11 वी सॉ, अगर नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो नेटफ्लिक्स को यहां पे रजिस्टर होना पड़ेगा कंपल्सरीली. क्लियर है? राइट, बिकॉज जो इंडिविजुअल है वो तो पर्सनल लेवल पे तो जीएसटी पेमेंट नहीं करेगा. एंड सच अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन हु आर नोटिफाइड एज पर सेक्शन नंबर 24, जब नोटिफाई किया जाएगा तब उनको टैक्सेबल पर्सन के डेफिनेशन के अंदर ला दिया जाएगा. सो एज ऑफ नाउ व्हाट वी हैव सीन इन सेक्शन नंबर 22 एंड सेक्शन नंबर 24. सेक्शन नंबर 22 ने क्या बोला? सेक्शन नंबर 22 ने हमको ये बताया दैट अंडर व्हाट सिचुएशन, सेक्शन नंबर 22 ने हमको ये बताया दैट इन केस ऑफ माय ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट आई विल लुकिंग ऑल द थ्रेशोल्ड लिमिट. देन सेक्शन नंबर 24 ने हमको ये सिचुएशंस बताई कि कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. नाउ सेक्शन नंबर 23(1) का हमने फर्स्ट पार्ट देखा था, जहां पे हमने देखा था दैट इफ अ पर्सन इज एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग व्हाट
द गुड्स विच आर होली एग्जेम्प्ट, होली एग्जेम्प्ट के अंदर क्या क्या आ गया, एक्सक्लूसिवली नील रेटेड, होली एग्जेम्प्ट, नॉन टैक्सेबल, दैट मीन उसके ऊपर लाइबिलिटी ही नहीं कलेक्ट करके पेमेंट करने का, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन क्यों लेना है, दैट इज व्हाई दीज काइंड ऑफ पर्संस आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 23. देन वी सॉ अबाउट एग्रीकल्चरिस्ट. अगर एग्रीकल्चरिस्ट इंडिविजुअल और एचयूएफ है, वो खुद का कल्टीवेशन करके अगर कोई माल बेचता है, देन दैट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी एंड दैट इज व्हाई ही इज आल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू टेक द रजिस्ट्रेशन. करेक्ट. देन वी सॉ सेक्शन नंबर 23(2), जिसमें अंदर जो भी प्रोविजंस है हमने साथ में पढ़े 22 और 24 के साथ. लेट अस जस्ट क्विकली सी दिस सेक्शन 20 that we have already covered with 22 and 24, right? So let me just open this for you guys so that you can understand, right? So we have seen interstate supplier of services, interstate supplier services के जो exemption थे हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं. interstate supplier of handicraft goods भी हमने कवर कर लिया है. interstate supplier of services to registered person, करेक्ट है, by a job worker, वो भी हमने कवर कर लिया है, राइट. CTP casual taxable person, that is also covered. persons making taxable supplies, टैक्स पेबल अंडर आरसीएम, वो भी हमने कवर कर लिया है. पर्सन्स मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, वो भी हमने कवर कर लिया. उसके अंदर कौन कौन एग्जेम्प्ट है, अगर कोई बंदा ऐसा है जो सर्विस प्रोवाइड करता है और वो खुद 22(1) के अंदर रजिस्टर्ड है, देन इज नॉट लायबल टू गेट रजिस्टर्ड. करेक्ट. उसके अंदर लिमिट क्या है, अप टू 20 lakhs और 10 lakhs. देन एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स, एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स, exclusive supplier of goods, aggregate turnover up to 40 lakhs rupees, we have already covered when we discussed about the states. And not applicable if a person, not applicable if a person is required compulsory registration. अगर compulsory registration के अंदर fall करता है, then he is this particular provision 23(2) will not be applicable. जब मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर की यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे जब ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात करता हूँ, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के अंदर स्पेसिफिकली क्या बोला गया है, जो 9(5) के ई कॉमर्स ऑपरेटर है, 9(5) के ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन है, ओनली 3 काइंड ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर्स फॉल अंडर 9(3). उसके अलावा अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा, देन दे हैव अ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 lakhs और 10 lakh rupees depending upon the state, and they are exempted from registration. Correct है. But if they are falling under this compulsory registration, that means 3 categories of e-commerce operator, they are falling compulsory under e-commerce under section number 24, so उनको registration लेना ही पड़ेगा. That means 23(2) will not be applicable to them. Correct. और अगर मैं सप्लाई ऑफ टबैको, आइसक्रीम और एडिबल आइस एंड पान मसाला करता हूं, तो भी मेरे को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा. 23(2) will not be applicable. If I'm exercising voluntary registration, then also I have to take. और ये स्टेट वाला जो पोर्शन आपको अभी छोड़ देना है, we have already covered in the chart. करेक्ट है. This is what we have covered as far as the registration का aspects are concerned. Correct. So this is what is there for today's session. Tomorrow what we'll be doing is, for some time we'll be doing this registration का procedure for say 40-45 minutes, and then we'll go on to the next chapter. Clear? Take care. Tada. Bye bye. Study well. Bye.